I guess I'm audible. Welcome everyone. You guys are watching the Pokemon Unite Weekly, and the game number one is gonna be between Team S8UL up against Liquid Esports. Liquid Esports on the left-hand side, S8UL on the right-hand side. We're jumping into the picks, picking phase. We can clearly see, okay, Hoopa, Serena, Dragonite, as well as Samusline. I didn't think that this one hero could actually be picked up, but then again, both teams, they come out with some pocket picks that are quite amazing and extremely fun to use. So Blissey is also going to be picked up. Both the teams are actually picking the Blissey as well as the Hoopa. And according to my intel, I was told that these two are the heroes that are used quite a lot in the compositions for almost all of these teams. So we're going to see how well they work out in this specific game. Number one, it's going to be the best of three, guys. So yes, you can really say that both of these teams, they're kind of on their comfortable seat. They want to test the waters in the game number one and then move on to their major strategies in game number two. We're going to witness how things go on. We're going to jump into the remote stadium in just a little bit. Greninja has been selected by Team Liquid Esports. So we're going to see how well it turns out for their team. Gardevoir is going to be for Team S8UL. I really like both of these picks, to be honest. But personally going to say Gardevoir is more of a mid to late game hero. So we'll just have to see कि आगे किस तरीके से हम इसमें मैच में बढ़ेंगे, क्योंकि मज़ा तो बहुत ज़रूर आएगा. रिमोट स्टेडियम में हम आ चुके हैं. हम क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे ब्रायन और टायू दोनों टॉप लेन की तरफ जाते हैं. प्रॉब्ली बॉटम लेन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा इन दोनों टीम्स का, क्योंकि सबसे पहले ड्रेडनॉट उसी साइड में आता है एंड दे लाइक टू प्ले अराउंड दैट ड्रेडनॉट. यहाँ पे पहले हमें स्कर्मिश देखने को ज़रूर मिल सकती है. माइट आराम से जाने की कोशिश करेंगे, स्कोर ज़रूर करेंगे. फर्स्ट गोल उन्होंने अपनी टीम की तरफ से कर दिया है. यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज ज़रूर लेते, हो सकता है हमें पहला किल भी दिख जाए, पर आराम से रिट्रीट भी कर जाएंगे. कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं हुई है. सिक्योरिंग ऑल दोज 5 Pokeballs for their own team. Meanwhile, in the bottom side as well, just see some skirmish going around. So that's a trade-off, and that's probably it. ज़्यादा अभी ओवर एग्रेसिवनेस किसी भी टीम से नहीं दिखती. They're playing it pretty safe, and that is the way to go with. Meanwhile, we can see Amrud being just checking out those bushes for his team, ताकि surprise attack ना हो जाए उनके ऊपर कहीं से भी. 3 men into the bottom side for the side of team S8UL. They're gonna probably target the bees right now. Yes, काफी अच्छी skirmish यहाँ पे होती है. Amrud is dropping pretty low. Meanwhile, they're gonna actually be very very safe. यहाँ पे बल्बासौर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. हमको आराम से रिट्रीट भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी. Meanwhile, in the top side, यहाँ पे they're actually playing pretty safe, both of these teams. Just gonna wait in for the first objective, that is going to be the Dreadnought. So they don't probably want to actually go in for some risky engagements. Meanwhile, Heathen will probably take some damage. यहाँ पे ऊपर अपना पोर्टल लगा चुके हैं और towards the tier 1, so we might possibly see some rotations from these teams, but not that much for now. They're just gonna play it safe yet again. Pura यहाँ पे कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर शायद नहीं ले पाएंगे. The Pokeballs have been stolen yet again. 24-0 is the current score. 7 minutes 50 seconds into the match. So not a very massive lead or anything like that. Just a small lead. But then again, we never know when it gets snowballed, क्योंकि Gardevoir है हमारी टीम S8UL के साइड में. So we know that he gets very aggressive in that late game. Meanwhile, can be taken down quite low in the HP. So we're gonna use his flicker spell. Curse is quite, he's actually trying to run away, and he will manage to do that as well. Meanwhile, Error वापस से अपनी पोजीशन पर आते हैं. He was taken down quite low by the damage of Gardevoir. Second beam यहाँ पर भी आ चुकी है. Might को आराम से zone out करके Error will secure the bees for himself. Meanwhile, in the bottom side, you can clearly see यहाँ पर कोशिश पूरी स्कोर करने की. 18 पॉइंट्स यहाँ पर स्कोर हो चुके हैं. 98 टोटल स्कोर आ चुका है. बल्बासौर ने भी आराम से अपना स्कोर इन किया, and they will retreat. 4 man rotation.
on that bottom side for team S8UL. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि एक और किल ज़रूर सिक्योर कर लेंगे. They have managed to do that. Meanwhile बल्बासौर भी अपना स्किल सेट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं. So I don't think so यहाँ पे दोबारा से कोई और एंगेजमेंट हो सकता है. फ्यूरा विल ऑल्सो रिट्रीट. ईजी ड्रेड नॉट सिक्योर. एंड यहाँ पे कोशिश रहेगी कि पहला टावर ज़रूर तोड़ दे वो लोग. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, गिविंग देम a huge lead of almost 96 points. So not very high. Of course the tables can be turned very quickly, but then again the way that team S8UL is playing is actually commendable, to be honest. Aram se they've traded that one tower on that bottom side, and now they're going to make the rotation towards the bottom and are zoning out team Liquid eSports एक्सट्रीमली वेल. यहाँ पे यूनाइट मूव यूज़ होती है, हमको ज़रूर दिख चुकी है. एंड काफ़ी अच्छी फाइट यहाँ पे होती है. ग्रेनिंजा काफ़ी ज़्यादा चांसेस बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएंगे. यहाँ पे पिक ऑफ भी हो चुके हैं. 2 किल स्ट्रीक, गार्डिवर 2 किल आराम से निकाल चुके हैं. बल्बासौर भी यहाँ पे आ गए. 3 किल टोटल सिक्योर कर रहे थे. यहाँ पे एक और किल ज़रूर मिल जाएगा. फ्योरा नहीं बच के जा पाएंगे. एंड दैट्स गोना बी येट अनदर tier 1 टावर टेकन डाउन. टीम S8UL playing in very smartly in this game and moving in way too swiftly, to be honest, going in towards that second goal. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस शायद थोड़ा ओवर एंगेज कर लिया, लेकिन ग्रेनिंजा काफ़ी बेहतरीन तरीके से बर्स्ट डाउन यहाँ पे होते हैं, हमको दिखाई दे चुके हैं. यहाँ पे गार्डिवर का एक और किल ज़रूर सिक्योर हुआ. मीनवाइल मामस फैन भी फिनिश ऑफ ज़रूर हो सकता है. देखना पड़ेगा कि बच पाएंगे वो. ब्लिसी की HP इज ऑल्सो प्रिटी लो, बट ट्राइंग लेवल बेस्ट टू डिफेंड दैट टावर. यहाँ पे अच्छा बर्स्ट देने की कोशिश की जा चुकी है, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पोर्टल का किया इस्तेमाल. एंड दैट इज गोइंग टू बी 3 किल स्ट्रीक फॉर गार्डिवर. नहीं जाने देंगे किसी को भी. 4 किल्स निकाल जरूर चुके हैं. एंड स्क्वर्टल फाइनल किल सिक्योर कर देंगे. डिड नॉट गिव देम द 5 किल स्ट्रीक, बट देन अगेन 4 कंटिन्यूअस किल्स एंड एक और टॉप की टियर टावर को फिनिश ऑफ यहाँ पे करके एक बहुत ही बेहतरीन लीड अपने टीम के फेवर में ला चुके हैं. 297 to 30 का टोटल स्कोर. They have not yet probably conceded any point in this match apart from those 30 points जो कि टॉप लेन में स्कोर हुए थे. तो देखना है कि वो किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करेंगे. They're gonna secure almost all the objectives that you can see in the map. In ways as such हमें अभी नहीं दिखे because they're still respecting the burst damage potential that might come in from Liquid eSports. But यहाँ पे Greninja दोबारा से थोड़ी aggressive positioning में हमको दिखते हुए. That's another dreadnought secured. Meanwhile यहाँ काफ़ी अच्छा पोर्टल लगाते हैं. ऑल द टीम विल गो इन दैट टॉप साइड. काफ़ी चांसेस किसी को पिक ऑफ कर देंगे, बट देन अगेन यहाँ पे एक और यूनाइट मूव का बेहतरीन इस्तेमाल. एंड दैट इज गोइंग टू बी सेरीना पिक्ड ऑफ येट अगेन. The way Team S8UL are rotating between those towers, just making sure that they don't concede any more points. And as soon as they pick up the Dreadnought, they're going to move towards the Rotom now. So वो सीधा base clear हो जाएगा because the tier 2 in the top side has already been broken down. But it is possible that they might focus on the bottom lane tier 2. Central area open हो ही चुका है उन लोगों के लिए. They've actually got quite a lot of Pokeballs on their hand, we can see. Because यहाँ पे Curse के पास भी got 50 in hand, so काफ़ी ज़्यादा chances are that they're gonna easily pick off another man from the side of Team S. Liquid eSports. Meanwhile top side में Rotom is actually managed to go in towards the base. That is something I did not personally expect, but I don't think so उस पे capitalize अभी कर पाएंगे यहाँ पे टीम S8UL के members because they're not there. Meanwhile यहाँ पे अमरुद काफ़ी ज़्यादा चांस है कि pick off हो जाएंगे. He was way too ahead and he had absolutely no support from his team, so that's going to be one good pick off coming in for the side of Team Liquid eSports. Greninja going in a kill streak of 2. मिलन को भी चेस करने की पूरी कोशिश है. यहाँ पे देखना है क्या वो पिक ऑफ कर सकता है मिलन को भी. as Venusaur is also there, going to be picked off very easily. So we might possibly see a comeback potential coming in from the side of Liquid eSports. Says no Team S8UL as they jump in with some amazing bursts, amazing ignite moves. But then again, that's already 4 men down, 3 men down. There's just 2 remaining and the HPs are extremely low. And they will manage to retreat. यहाँ पे Squirtle को ज़रूर पीछे जाना पड़ेगा. That is another pick off. Hoopa is going to be taken down as well as Squirtle, but it actually gave enough time for Blissey and Venusaur to come up. But they're going to respect the burst damage. They're going to respect the scoring potential as well for Liquid eSports, and they're going to leave that tier 1 out of the picture. यहाँ पे एक और Dreadnought आता हुआ है. This time we can clearly see the control going in hand of Liquid eSports. They finally changed the momentum of this game number 1. 7 more seconds and we're going to finally see the main battle of this game that's gonna come in as Zapdos has finally appeared. Meanwhile
the lead is clearly for Team S8UL, and they probably want to just zone out the members of Liquid Esports out of that Zapdos pit. They want to force that fight. So we'll have to wait and see how well Team Liquid Esports play in this match. यहाँ पे तायो काफी अच्छे तरीके से ट्राई करेंगे 100 पॉइंट्स उनकी नाक के नीचे से लेने का, एंड he'll probably manage to do that as well. Meanwhile Zapdos के अंदर जो फाइट होती है दिखाई दे रही है, काफी अच्छा सिक्योर कर लिया ग्रे निंजा ने Zapdos को, and we might possibly see a turn of events as most of the members are alive and they're gonna go in and score. Meanwhile I don't think so. The game is actually turning around pretty quickly, to be honest. Fiora wants to go and score another point, will be deleted right away. 565 to 415 is the total score. 78 points again scored by Venusaur. ग्रे निंजा ने भी काफी अच्छा स्कोर करने की कोशिश करी है, काफी क्लोज मैच जरूर चलता हुआ है, बट देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो आगे इसमें बढ़ पाएंगे. बट that really seems difficult at this point. 565 to 495 and Zapdos का time is over, so they need a full 5-man push, and वो भी base के इतना ज़्यादा close. I think so Team S8UL will get the win in this one. Liquid Esports, they still have 36 seconds. They need to do something out of the ordinary, which seems really difficult. They're probably making their move from that bottom side. Let's see if they actually manage to score those points. 20 more seconds. They need to win the fight and then they need to score the points. यहाँ पे Blastoise भी अपना स्किल का अच्छा इस्तेमाल करते हुए करेंगे रिट्रीट बैक इन हिज बेस. यहाँ पे आराम से शील्डों को बहुत अच्छे से यूज कर चुके हैं. Meanwhile the fight has broken out finally. We'll have to see how well this goes. That's going to be an amazing ultimate as well. Used up, 3 people taken down, make it 4. The final person wants to go in and score, will not be allowed to do so, and that is going to be game number 1, won by Team S8UL. Liquid Esports, I really thought that they probably had a chance to come back in this match. The moment they took the Zapdos, they closed that lead so much. But the way Venusaur played, the smartness that he showed, that he did not go back to defend his own towers. He went in forward to score a few goals for his team, and that is probably the main reason why they managed to stay ahead of Team Liquid Esports even after they lost the Zapdos. That was a very well played and very smart move from S8UL. Very good coordination from their team, and that was absolutely amazing. We can see यहाँ starting से Team S8UL के पास काफ़ी अच्छी lead थी, and near that final stretch जहाँ पे सीधा cover up मारा था टीम लिक्विड esports के मेंबर्स ने, दैट वाज रियली कमेंडेबल, वोंट इवन लाई. बट वो जो फाइनल स्कोर वहाँ पे हमें दिख रहा है, जो एक पीक की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है टीम S8UL का ग्राफ, दैट वाज बिकॉज ऑफ द Venusaur, द वे ही स्कोर्ड दोज पॉइंट्स, दोज इम्पोर्टेंट 60 something points, man. That was amazing. That was absolutely amazing. So moving forward, yep, that's probably gonna be it. I kind of missed the data of the previous match, but okay, I'm also learning side by side, guys, and you know, make sure to check out the description, because you're gonna see the link to the registrations of the next tournament that's gonna begin from Monday. So you just want to check out the description real quick, as well as hit that like button and subscribe to the channel. And yes, please don't judge my commentary too harshly, man. And this is my first time trying for PU casting. Make sure to please help me out as well, side by side, and the channel too. We're gonna be making the lobby for game number 2, so make sure to stay tuned, as both teams are probably ready. I'm just gonna head to that top side. Yeah, I'm in the top side. Both teams are ready. We're gonna be heading into the game number 2 now. Jumping back to how things were happening in that game, we saw the way, you know, both the teams kind of showed the similar play style, I would say, because they did not went in way too aggressively. They were playing it very safe. They were not giving the opportunity to their opponents, you know, to pick them off. They were playing it very smartly. आराम से they were maintaining that safe distance as well. They were forcing कि उनके opponent उनके पास आए, and you know, they kind of over engage, थोड़ा over extend करें, उसके ऊपर वो capitalize ज़रूर करे. But at the end of the day, the game was won by S8UL. काफ़ी
कंसिस्टेंटली उन्होंने कंटिन्यू स्कोर भी किया था. That was also one of the major reasons. Now they're probably going to keep the same composition for their side. Yes, it's going to be the Gardevoir, Venusaur, Koopa, Blissey as well as Squirtle for their composition. Let's see if Liquid Esports are going to change the comp or they're going to keep it the same. मेरे हिसाब से थोड़ा सा चेंज ज़रूर करेंगे क्योंकि लास्ट वाला composition उस हिसाब से उनके लिए चल नहीं पाया था. Though I would still say that the match was on equal footing even till the last minute of the game. We knew कि कुछ भी हो सकता है किसी फाइट में. The Greninja secured that Zapdos very well, to be honest. काफ़ी स्मार्टली भी ठीकली सिक्योर किया था उसने वो Zapdos. बट स्टार्टिंग की जो फाइट्स वगैरह थी उसमें वो पोजीशन थोड़ी सी was like up and down. So probably they're gonna work on that. Maybe Trevenant यहाँ पे इस बार pick हो चुका. I was asking if Trevenant can be picked up or not, and it seems like that yes, the surprise element is in, and Liquid Esports bringing in some amazing picks. Greninja, Lucario, Sylveon as well as Blissey. So we'll have to see how well it turns out for their side. No Hoopa this time. So यहाँ पे photos तो नहीं दिखेंगे हमें उनकी तरफ से, but देखना है कि गेम नंबर 2 किस तरीके से निकालने की कोशिश रहेगी क्योंकि Liquid Esports की backs are against the wall right now. So प्रेशर में ज़रूर होंगे वो इस टाइम पे, बट देन अगेन प्रेशर में जो टीम खेल के आगे निकलती है वो ही इन गेम्स में आगे की तरफ जाती है और आगे बढ़ती है. We'll just see how well they move forward in this game. Lucario तो ज़रूर लिया उन्होंने, so that continuous scoring strategy probably उसके साथ जाने की कोशिश ज़रूर रहेगी. And we can see Lucario just jumping in, probably gonna score a few points. This absolutely. Meanwhile in the bottom lane as well, we can see the aggression this time from टीम S8UL. उन्होंने क्लियरली वो थोड़ा सा शो ज़रूर कर रहे हैं कि हाँ पिछले मैच जो हमने निकाला था उसके वजह से हमारे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है इस मैच में. बट द लुकारियो इज कंटिन्यूसली स्कोरिंग, कंटिन्यूस स्कोरिंग स्ट्रैटेजी जिसकी हम बात कर रहे थे. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. बट लेट्स सी इफ ही एक्चुअली मैनेज टू सर्वाइव और नॉट. मिलन काफ़ी अच्छे तरीके से ये ज़रूर कर रहे हैं. ही विल गेट द शील्ड एंड विल टेक सम एचपी बैक एज वेल. मीनवेल साइड बाय साइड माइट प्रॉब्ली थोड़ा ओवर एक्सटेंड कर चुके हैं यहाँ पे. मैम भी अपना आराम से रिट्रीट करेंगे. मीनवाइल अगर बॉटम लेन की बात करें वहाँ पे भी कंटिन्यूस स्कोरिंग हमें दिखाई दे रही है इस बार S8UL की तरफ से. सो दे आर मेकिंग श्योर टॉप लेन में जो भी उनकी तरफ से गोल पॉइंट स्कोर नहीं हो पा रहे वो बॉटम लेन में कंटिन्यू स्कोर करे भी. इसको भी अच्छा सिक्योर करने की कोशिश थी. मीनवाइल टॉप लेन की भी सेम फाइट हमें होते हुए दिख रही है. अमरूद की एचपी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है वो हो सकता है थोड़ा आगे जाए. लेकिन दैट्स गोना बी देम गेटिंग द शील्ड. लेट्स सी इफ दे एक्चुअली वांट टू move forward with this issue. They're actually securing a lot of pokeballs for their side. So objectively they're doing very very good. Experience भी काफ़ी अच्छा आ रहा है उनकी टीम पे. But that is quite a ton of damage being dealt by Mr. Artist. He definitely is an artist in that sense, to be honest. Meanwhile in the bottom side the things seem to be same, but I can clearly see the aggression being shifted in favor of Liquid Esports. They're the ones who are continuously going in for those scoring points. Tayo is not at all stopping. We're gonna see the first major fight probably around the Dreadnought, because both the teams they want to play around that main objective, major objective, and currently we can clearly see Lucario just going in, pressurizing that top lane, making sure कि अगर bottom lane की fight जो है उसके होने से पहले he gets top lane down to a certain point that becomes pretty easy for their side to actually take that off or at least trade the objective. जहाँ पे काफ़ी अच्छा damage दे तो है. He's gonna jump back to where his skill was. He did a ton of damage to Might, so that was a really good move honestly. 22 seconds for the trade now. Let's see these top side में इस बार आती है. But he's gonna go in and score easily. He's gonna secure them easily. He's gonna do a ton of damage as well. He's gonna jump back. Meanwhile, in the bottom side, the aggression keeps coming in from the side of S8UL. They've actually managed to pick one off. So okay, the HP is quite well. Let's see how well this team fight goes. That's already one pick off. Mamazine has picked one guy off already. Let's see, will they turn this advantage into a major objective? They want to go in for the Dreadnought. Tayo is also back in action, but has been taken quite low. Meanwhile, Amrut is there standing with a ton of HP, so he will be able to tank quite a lot of damage. That's going to come in from Team Liquid Esports. That's going to be Lucario jumping in the back lane, going to secure one. He wants to go in for more. Dreadnought has already been secured by Sylveon, and that is going to be a clean 2-for-2 trade-off.
I wouldn't say it was in favor of either of those teams, but definitely since the Dreadnought was secured by Mr. Artist, he did give his own team a massive advantage in that EXP as well as, you know, in that gold, I would say. Not exactly gold, but yeah, the EXP. Now we can clearly see the quick rotation coming in from the side of S8UL towards the top side. They want to go in for that Rotom. They want to take that one objective to trade that EXP. Greninja has been taken quite low though. Lucario is there, wants to go in for more damage. Let's see if he actually manages to pick one off. Yes, he definitely will, giving a major advantage to his team. And now comes in the Squirtle. He will retreat as his HP was quite low though. The Rotom is being started by Mr. Artist. Meanwhile, Lucario as well as Blissey are just trying to zone out the rest of the members from the side of S8UL. They're playing in way better than the previous game, honestly. Just showing. Meanwhile, the Blastoise is coming in with his Unite move. That is going to be Rotom secured by Team S8UL, but they have to run backwards because they're being taken quite low. Almost all the Unite moves are on the table right now. They're going to take one more. Gardevoir is going in for a 2-kill streak. Will he manage to take the third one? No, it's going to be Squirtle. But then again, जो भी aggression top lane से आ रखा था उनके ऊपर पूरे को turn around कर दिया है उन्होंने. They've managed to take down tier 1 of that top side. Now काफी ज़्यादा दिक्कतों में यहाँ पे मेरे हिसाब से आ चुकी है टीम लिक्विड eSports, because उनका पूरा प्रेशर जो था, पूरी जो उनकी अर्ली गेम की लीड थी वो सारी उनके हाथ में से जा चुकी है. बस मिड गेम के अंदर देखना पड़ेगा किस तरीके से अब आगे के ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करते हैं. काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में यहाँ पे पड़ सकते हैं हमारे ब्रायन, बट ही वांट्स टू गो इन फॉर द चेज. यहाँ पे यू नो टीयर 1 होने का काफ़ी ज़्यादा फायदा ये होता है जितनी बार भी तुम उसके अंदर जाओगे शील्ड ज़रूर मिल जाएगी आफ्टर दैट कूल डाउन. सो at the end of the day, if you're being taken down quite low in HP, you can actually jump back. Meanwhile, यहाँ पे मेलन अपनी अल्ट का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करके 2 किल्स सिक्योर कर चुके हैं. अपनी टीम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मौका दे दिया ड्रेडनॉट को भी सिक्योर करने का. अब वो फोर्स करेंगे बॉटम के टियर 1 को भी, सीधा जोन आउट कर दिया है. हमारे कीर्तन को यहाँ पे नहीं बचा पाएंगे वो टियर 1 इस टाइम पे. बॉटम साइड के लुकारियो को उन्होंने भेज दिया कि आप जाइए कोशिश करिए टॉप लेन की टियर 1 को निकालने की, टॉप लेन में एक्स्ट्रा पॉइंट्स और स्कोर वगैरह करने की, क्योंकि उनको किसी ना किसी तरह स्कोर बराबर करना है. 199 to 102 लीड इज क्लियरली इन फेवर ऑफ S8UL right now. We'll just have to wait and see how, you know, Team Liquid Esports try to turn things around from this point, because it kind of seems like a repeat telecast of what happened in game number 1. But then again, Liquid Esports के backs are against the wall, तो उनको किसी ना किसी तरह इस गेम में आगे आना पड़ेगा. यहाँ पे गार्डिवोर के ऊपर जाने की पूरी कोशिश है. देखना पड़ेगा कि आप बच पाएंगे वो इस टाइम पे. Yes, he will manage to survive. Blastoise की भी HP अभी इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा. He's trying to fight 3v1 fight and काफ़ी अच्छे से he managed to zone them out as well as take them quite low in the HP. Selion ने यहाँ पे ऑफ स्क्रीन किल जरूर सिक्योर किया था, बट लुकारियो भी यहाँ पे फिनिश्ड ऑफ हो चुके हैं. Blastoise needs to survive this one. Blissey will finally be taken down, probably not before taking Squirtle down, and they are actually going to trade it off 1-for-1 right now. Quite a ton of Pokeballs we can see falling onto the ground, but that is, I would say, a good trade for Team S8UL, because they've increased their goal lead. Now the score is 233. 20 दोबारा से यहाँ पे आ चुके हैं. Meanwhile, Dreadnought will be spawned in the next 20 seconds. यहाँ पे Lucario is also trying to force the issue. Top lane की Rotom की फाइट जरूर हमें देखने को मिल रही है. इस पॉइंट पे ब्रायन काफ़ी ज़्यादा आगे जरूर निकल गए थे. यहाँ पे हो चुके हैं पिक ऑफ. Lucario की काफ़ी कोशिश 1 किल निकालने की. ग्रेनिंजा की HP काफ़ी ज़्यादा लो है, वो कर जाएंगे रिट्रीट. स्क्वर्टल ने बहुत अच्छा जोन आउट किया था. Lucario यहाँ पे नहीं बच पाएंगे. Meanwhile, in that bottom side, things seem to be pretty normal, honestly. यहाँ पे I don't think so कि किसी ना किसी को भी कोई भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है. मेरा Rotom वहाँ पे tier 2 तक ज़रूर पहुँच चुका है, but I don't think so यहाँ पे इशू को फोर्स करने की कोशिश रहेगी टीम S8UL की. They probably want to just zone out again the members of Team Liquid Esports up. Split यहाँ पे fight probably is continuing. Let's see if they actually manage to win this one. Greninja backline में जाके Unite मूव जरूर मार चुके, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्किल्स को, बट देखना पड़ेगा. वो जोन आउट यहाँ पे होते हुए हमें दिख रहे हैं. यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन प्ले coming out from the Mammoth coin. Secures 2, wants to go in for the third one.
काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मिस्टर आर्टिस्ट ने अपना आर्ट ज़रूर दिखाया है। बहुत ही अच्छा किल यहाँ पे सिक्योर किया आउट प्ले आउट से, काफ़ी बढ़िया तरीके से दिया है। बट देखना है कि क्या वो और किल सिक्योर जरूर कर पाएंगे। 3v1 की सिचुएशन है। नो, ही विल नॉट be able to do so. Zapdos still up for grabs, and that's a very good denial coming in from team S8UL, to be honest. We'll have to see no more Unite moves are up except for a Gardevoir, so काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली यहाँ पे खेलना जरूर पड़ेगा। देखना सिक्योर yet another kill. I don't think so this pick is actually coming out in handy for the side of Liquid eSports. यहाँ पे पॉकेट पिक की कोशिश ज़रूर थी बट वो काम नहीं आ रहा है इस टाइम पे। गार्डीवर पर ग्रेनी जाने बेहतरीन किल ज़रूर सिक्योर किया था पर अब 3 लोगों से वो नहीं बच पाएंगे। ज़ैप्डॉस अभी भी वहीं पे है, बिल्कुल छूने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे लुकारियो की काफ़ी ज़्यादा लो एच पी, देखना क्या वो जिंदा बच पाएंगे। बिल्कुल जिंदा बच नहीं पाएंगे यहाँ पे क्योंकि मैमोस्वाइन को उन्होंने किल ज़रूर सिक्योर किया। 1 for 1 पिक ऑफ आया है एंड क्लियर विन किसी भी टीम की नहीं आ रही है इस टाइम पे। तो ब्लास्टर्स यहाँ पे स्नीकीली एक बेहतरीन स्कोर करके दिखाई दे रहे हैं हमको। ज़ैप्डॉस लेने की काफ़ी कोशिश है यहाँ पे ब्रायन की, देखना है कि क्या वो ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बाकी मेंबर्स ऐसे ट्वेल्व के भी आ चुके हैं। फाइट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एज ब्लास्टर्स हैज forced another person out of the Zapdos pit. Meanwhile, he's not letting them take it at all. 4 more seconds and team S8UL, they're doing an absolutely amazing job not allowing their opponents to pick the Zapdos up, turns the things around. Absolutely stunning gameplay. Very objective based gameplay, I would say, from team S8UL. Even though they were the ones who were losing in the battles in the early game, the Lucario was continuously going in for those small scores, but at the end of the day यहाँ पे S8UL ओवरऑल विक्ट्री निकालते ही माइट यहाँ पे दिख रहे हैं हमें MVP उनकी टीम की तरफ से। 233 डंक्स उन्होंने स्कोर करे। I really like to say the word dunk because I'm just a basketball fan from art. So यहाँ पे the whole composition worked out really well for their side. They knew कि early game aggression उतना ज़्यादा नहीं होगा उस हिसाब से। They knew that Liquid eSports will be the ones will be the aggressors in that early game. But at the end of the day, they did manage to come out on top in this game because they knew what the win conditions were and वो उसी के along खेल रहे थे and उसी के along वो इस मैच को निकाल भी पाए। तो वेरी स्मार्ट प्ले। यहाँ पे अगर डिटेल्स पे हम ध्यान दें तो मेलन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी उनके हाथ दिख रही है। 51.4%, 43,863 की रिकवरी। मीनवाइल यहाँ पे देखिए किसने सबसे ज़्यादा डैमेज दिया था। सो वी कैन क्लियरली सी दैट इट इज़ माइट। I mean mighty damage from his side to be honest. 83,000, 26.3 for the whole team. यहाँ पे मैमोस्वाइन भी ज़्यादा पीछे नहीं थे। 82,000 and 25.7% का डैमेज उनकी टीम की तरफ से। While looking at the side of Liquid eSports, the person with the most recovery was definitely Brain, man. Like amazing recovery from his side. But I would really say that this pick did not work out for their team. He was not all being tanky. He was being deleted, to be honest. He was being very easily deleted just because of the burst potential from S8UL. तो जितना टैंकीनेस उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी उस हिसाब से निकल के नहीं आई। सो वो उस तरीके की स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए जिसको लेके वो इस गेम के अंदर आए थे। यहाँ पे तायो विल बी द वन विल बी डीलिंग मैक्सिमम डैमेज। 72,000, काफ़ी अच्छा डैमेज उन्होंने दिया अपने टीम की तरफ से। एंड ही वॉज the lead scorer of his team. But at the end of the day, it's a full 5v5 game, guys. अकेले आप कितना ही अच्छा खेलो, you need the support of your team side by side. But these teams played really well. But at the end of the day, S8UL just coming out on top. So 2-0, and they're going to be the first finalists. So we finally witnessed the first finalist of our Pokemon Unite Weekly 1, and that is going to be Team S8UL. Now we're going to have another best of 3 match, and that will be between Team Kemin eSports taking on Bad Strategy, and that they will provide us with the second finalist, and we're going to have that finalist today. So make sure to stay tuned, and just check out the description for the next टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन लिंक। इट इज़ राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो आराम से जाइए, उस पर क्लिक करिए एंड अपनी टीम को रजिस्टर भी कर लीजिए अगले उसके लिए। While we're gonna jump into second semi-finals of the game in just a while. So just stay tuned, guys, and hit that like button as well as click on that subscribe button. Bell notification भी hit कर लो ताकि you never miss out on any of the videos
एंड ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा देखोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू लर्न अबाउट न्यू मेटाज, न्यू पॉकेट पिक्स, द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट पोकेमॉन. सो यू नो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार एट द एंड ऑफ द डे. यू नीड टू वॉच हाउ द टीम्स जो कंटिन्यूसली पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट प्ले, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज हमारे सामने लेकर आते हैं, किस तरीके से उनका प्ले स्टाइल रहता है, क्या उनकी विन कंडीशंस रहती है. इट डिपेंड्स ऑन यू नो कॉम्पोजिशन टू कॉम्पोजिशन. तो बस थोड़ी देर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने बैड स्ट्रैटेजी और केमिनी स्पोर्ट्स की प्लेयर्स आने ही वाले हैं. So we're gonna jump into the second semi-finals in just a bit. Make sure to stay tuned. And yes, I want to say you guys once again, if you want to participate in the Pokemon Unite weekly tournaments, make sure to check out the description, क्योंकि वहाँ पे link है for the registration. Click on that link and register your team. Follow a few easy steps and you know you can win amazing prizes, to be honest. Plus you'll gain a ton of experience. So yeah, why not, man? Like, why not? Because it's a good refreshment as well, and amazing competitiveness that these players bring onto the table. And the esports scene is growing pretty well in our country. Why stay in the backseat? You know, why not just start different things? Just you know, step out of the comfort zone and click on that registration link. Register your teams, participate. It's going to begin from Monday, but right now we're going to begin the second semi-finals. It's going to be Team Bad Strategy on the blue side taking on Kemin eSports on the red side. You can say purple and orange as well, but it's more like potato. बेस्ट ऑफ 3 का एक और मैच हमारे सामने है गाइस, एंड देखना है कि अब ये टीम किस तरह की कॉम्पोजिशंस लेकर आती है. हुपा, ब्लिसी, सरीना, ड्रैगनाइट और हमें कोई नहीं. यहाँ पे हमारी टीम केमिन eSports की तरफ से दिखता हुआ मीनवाइल बैड स्ट्रैटेजी गोइंग विद द ग्रेनिंजा, पिकाचू, ब्लिसी, सरीना एज वेल एज हुपा. सो डिफरेंट कॉम्पोजिशंस. तो देखना किस तरीके से यहाँ पे वो अपना यू नो विन को निकाल के ला पाएंगे. अभी भी लास्ट मिनट चेंजेस यहाँ पे चलते हुए हमें दिखाई ज़रूर दे रहे हैं. देखना है कि क्या पिक करेंगे. विल इट बी अ ज़राओरा और विल इट बी अ ग्रेनिंजा? ग्रेनिंजा इट इज़ इन द फाइनल सेकेंड्स ऑफ द मैच. आई वुड से पिकाचू काफ़ी अच्छा पिक, बट देखना कि किस तरीके से वो अपने यूनाइट मूव का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक यूटिलिटी पिक बहुत अच्छा है. बूस्ट डैमेज पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. बट वही बात है, अगर उन्होंने मिस आउट कर दिया ज़रा सा भी, अपने कूल डाउन के साथ थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं. हमें पता है ड्रैगनाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यू नो सेंट्रल लेनर इस टाइम पे. लेकिन देखते हैं कि क्या वो विल ही गो इनटू द सेंट्रल एरिया और विल इट गो टू सम डिफरेंट लेन. सरीना भी यहाँ पे है हमारे टीम केमिन eSports के पास. यहाँ पे आ चुके हैं रिमोट स्टेडियम के अंदर. लेट्स सी व्हिच टीम गेट्स द विन इन द गेम नंबर 1, second semi-finals of Pokemon Unite Weekly. Both the teams just jumping into the normal central area, following the standard rotations that they usually do. But यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें aggression तो अभी थोड़ा सा ज़रूर दिखता हुआ केमिन eSports की तरफ से. They're trying to go in for that invading play. कोशिश ज़रूर करेंगे हर एक पोकेबॉल छीनने की, और वही काम किया है यहाँ पे. काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सिक्योर भी कर लिया उस क्रीप को. एंड दे वांट टू ट्रेड इट ऑफ, यू नो बैड स्ट्रैटेजी, वांट टू जंप इन एंड ट्रेड इट ऑफ. काफ़ी अच्छा पोकिंग डैमेज यहाँ पे देते हुए केमिन eSports के मेंबर्स, नॉट लेटिंग देम टेक इवन अ सिंगल क्रीप फ्रॉम देयर साइड, जस्ट शोइंग, जस्ट यू नो डिपिक्टिंग द प्रेशर. तो देख रहे किस तरीके से यहाँ पर हमारे बैड स्ट्रैटेजी के मेंबर इसके अलॉन्ग खेल पाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा मिड टू लेट गेम का वेट ज़रूर करना पड़ेगा. ग्रेनेड ने काफ़ी अच्छा किल ज़रूर सिक्योर करना पड़ा. ट्रेड ऑफ भी हो चुके हैं टॉप साइड में. लूफी ने भी एक काफ़ी अच्छा रिटेलिएशन का किल निकाल लिया है. अभी बॉटम लेन की तरफ हमें 3-man रोटेशन ज़रूर दिखाई दे रही है टीम केमिन eSports की. Infi is already in that bottom side, just gonna show कि bottom side की probably bees को अपनी तरफ सिक्योर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे यहाँ पे. Meanwhile in the top lane as well, we can clearly see the domination coming in from Team Kemin eSports. They're going in for those scores, just zoning evil out from that tower. Really very smart, clear cut domination. भी bottom में 3 men थे, फटाफट से पोर्टल का इस्तेमाल करके टॉप लेन की तरफ अपने एडवांटेज को ज़रूर प्रेस किया था.
with really a beautiful play coming in from team Kemin right now. Bad strategy. They need to answer this back some way or the other. स्कोर ज़रूर करें 4 पॉइंट्स, देखना पड़ेगा क्या बच पाएंगे वो कीरा, बिल्कुल बच पाएंगे, आराम से रिट्रीट भी करेंगे और यहाँ पे कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी एडवांटेज को प्रेस करने की. रिमेंबर्स फ्रॉम बैड strategy coming in. Let's see how good their strategy might be this time as Luffy will still survive, but Kira seems to be in trouble क्योंकि यहाँ पे हमें सपोर्ट ज़रूर आके दिख चुका है ड्रैगनाइट का. देखने की क्या वो किल निकाल पाएंगे. नहीं, स्ट्रिक्स इज नॉट एबल टू सिक्योर एनी किल, बट डेफिनेटली डिड मेक श्योर कि बैड स्ट्रैटेजी को फोर्स बैक करे वापस यहाँ पे. मीनवाइल ईविल भी आ चुके हैं सपोर्ट में. देखना पड़ेगा एनएच के काफ़ी एग्रेसिव प्ले ज़रूर शो करते हुए. सेलिना के ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज भी ज़रूर किया था, आधी एचपी हो चुकी है. मीनवाइल दे स्टिल ट्राइंग टू गो इन फॉर द बी skirmish and they have managed to secure that. Dreadnought is coming in next 7 seconds. Let's see कौन सी टीम को मिलता है ये Dreadnought, because both of them are gonna fight in for that one objective, and yes, it is there. Dragonite is going in for that kill. Definitely did secure one on Blissey, making sure to give the numbers advantage to this team. और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है उनके कि वो आराम से सिक्योर जरूर कर लेंगे. काफ़ी बेहतरीन यूज़ भी किया था यूनाइट मूव का, लेकिन बिल्कुल उसी परफेक्शन के साथ भी मिस कर दी थी उन्होंने. वो काफ़ी अच्छा डॉज हमें देखने को मिल गया था टीम बैट स्ट्रैटेजी की तरफ से. बट देखना है कि क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे. ऑलरेडी 2 मेंबर्स डाउन है यहाँ पे. काफ़ी अच्छे तरीके से बर्स्ट डैमेज भी देते हुए कोशिश करेंगे ज़रूर स्कोर करने की. एंड यहाँ पे बिल्कुल स्कोर करके टियर 1 निकाल देंगे. 168-22 का टोटल स्कोर हमें यहाँ पे दिखता हुआ. देखना कि अब दोनों ही टीम्स हमारी रॉटम की तरफ रोटेशन ज़रूर दिखाएंगी. एंड हमारी टीम Kemin थोड़ा सा तेज़ ज़रूर थी, एंड they are actually going in for the Rotom very quickly. Let's see if they actually manage to secure that one. Yes, they did. Dragonite है उनके पास सिक्योर करने के लिए, and that's exactly what they've done. 2 किल भी निकालते हैं, and एक tier 1 ज़रूर निकाल देंगे. And they want to go in for more, honestly. यहाँ पे Serena goes in for a 2-kill streak, and they're forcing the tier 2 on that top side. Meanwhile, the members from the side of bad strategy are there trying to defend it, but they're being finished off in their own tower. Just look at their HP. The clear cut domination यहाँ पे हमारी टीम Kemin की तरफ से आता हुआ. Though one of them members have already fallen, बट सिर्फ 5 पॉइंट्स अभी तक उन्होंने इस टॉप साइड पे स्कोर ज़रूर करे. और यहाँ पे पिकाचू 2-kill स्ट्रीक पे, एंड उनकी सरीना का बर्स्ट डैमेज काफ़ी अच्छे तरीके से आता हुआ दिखा. I would say really good punish from the side of bad strategy. Honestly, they played it really well in this one, even though they were being pushed back अपने tier 2 में भी. But then again, they probably Kemin overestimated their burst damage and नहीं निकाल पाए वो उस tier 2 को. यहाँ पे स्केयरक्रो काफ़ी अच्छे तरीके से थोड़ी सी और पोकेबॉल सिक्योर करते हैं, ट्रूप्स वगैरह को फिनिश ऑफ करते हैं. देखना है कि किस तरीके से स्कोरिंग करेंगे वो आगे जाके, बिकॉज दे नीड टू स्कोर somehow. 198-22 का टोटल स्कोर डिफरेंस. यहाँ पे कीरा ऑफ पोजीशन ज़रूर पकड़े गए हैं, होंगे पिक ऑफ. ईविल कोशिश ज़रूर कर रहे हैं बैक लाइन में जाकर थोड़ी पोजीशनिंग चेंज वगैरह करने की. यूनाइट मूव यूज़ करने पे फोर्स हो चुके हैं, एंड यहाँ पे दूसरे हुपा ने भी अपने यूनाइट मूव का इस्तेमाल कर लिया है. ड्रेडनॉट की उधर फाइट क्लियर कट होती दिखाई दे रही है, एंड देखना है कि कौन सी टीम को यहाँ पे मिलेगा. ड्रेडनॉट बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपनी यूनाइट मूव का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल. 2 डैमेज really is there. Pokemon eSports 2 ऑलरेडी फिनिश ऑफ कर चुके हैं. यहाँ पे कीरा को भी फोर्स करेंगे पीछे जाने पे, एंड बाकी 4 मेंबर्स फटाफट से जाएंगे अपना ड्रेडनॉट को सिक्योर करेंगे. इनकी अकेले यहाँ पे जोन आउट करते हुए कीरा का किल भी सिक्योर कर लेंगे वो शायद. एचपी वगैरह थोड़ी मिलती है उनको वापस. ईविल भी आ चुके हैं सपोर्ट करने के लिए, सो इनफी विल मैनेज टू रिट्रीट बैक टू सेफ्टी. मीनवाइल इन द टॉप साइड रोटम भी उतनी ही तेजी से ले रही है. टीम Kemin eSports उन्होंने सिक्योर कर लिया है रॉटम भी. तो दे आर टेकिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑन द मैप, चाहे वो बॉटम लेन का ड्रेडनॉट हो चाहे टॉप लेन का रॉटम. दे टेकिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स एवरीवेयर. यहाँ पे NHK की HP काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, एंड ही विल बी पिक्ड ऑफ. दैट्स अ वेरी गुड प्ले कमिंग इन फ्रॉम देयर साइड. बट देखना इफ दे एक्चुअली विल मैनेज टू गेट मोर किल्स एंड टेक द टॉप tier 2 आउट, बिकॉज यहाँ पे रॉटम ऑलमोस्ट उस तक पहुँच चुका है. सेरेना इज ऑल्सो ट्राइंग टू स्टॉप इट. मीनवाइल इन द बॉटम साइड यहाँ पे Kemin के मेंबर्स ऑलरेडी वहाँ पे और पॉइंट स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. देखना है कि क्या ये वापस भाग पाएंगे. सेरेना इस टाइम पे बिल्कुल भागेंगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्टल का भी इस्तेमाल कर लिया था हुपा का. सीधा गए हैं बेस के अंदर, करेंगे फुल HP और आएंगे वापस इस गेम में.
they've done the damage, क्योंकि टॉप लेन में उन्होंने शो किया था they are forcing the issue, और बॉटम लेन में वो कंटिन्यूसली स्कोर कर चुके थे पॉइंट्स। तो यहाँ पे अब देखना है कि किस तरीके से कम बैक करने की कोशिश करेगी टीम बैड स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने इस्तेमाल करी थी वो लिटरली उनके काम नहीं आ पा रही है इस टाइम पे। दे आर नॉट बीइंग एबल टू आंसर द पिक्स फ्रॉम द साइड ऑफ केमिनी स्पोर्ट्स। यहाँ पे ब्लिसी की एचपी काफ़ी ज़्यादा लो, कीरा भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनफी वांट्स टू गो इन फॉर द चेज। यहाँ पे एचपी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, हो सकता है वो थोड़ा ओवर एक्सटेंड कर दिया हो, लेकिन सपोर्ट है उनकी टीम का भी यहाँ पे, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हुपा का पोर्टल्स का इस्तेमाल एचपी बढ़ा के आया वापस, एंड और ज़्यादा डैमेज मारेंगे। इविल की एचपी क्वाइट लो, वेल मैनेज टू रिट्रीट टू सेफ्टी। तो यहाँ पे वो जो कंटिन्यूसली काइटिंग कर रहे हैं, वो ये जो आगे जाके वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं, इससे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है टीम बैड स्ट्रैटेजी के लिए। दे आर नॉट फाइटिंग एट फुल एचपीज एट ऑल द पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा पहले दे फोर्स देम टू गो बैक टू देयर ओन बेस, दे फोर्स दो स्किल्स, एंड जैसे ही उनकी स्किल्स कूल डाउन वगैरह पे जाती हैं, उनके पास पूरा मौका मिल जाता है, पूरी एक ओपनिंग मिल जाती है चीज़ों को रैप अप करने के, फिनिश ऑफ करने के। देखना है किस तरीके से आगे निकल के आएगी सिचुएशन हमारे सामने। जो फाइनल स्ट्रेच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, एंड जस्ट काइटिंग अराउंड दोस्त उसी के आसपास ही खड़े हैं, नहीं ना ही खुद ले रहे हैं ना ही लेने के लिए दे रहे हैं। मीनवाइल सेरेना यहाँ पे 100 पॉइंट ज़रूर स्कोर करती है अपनी टीम के लिए। देखना है किस तरीके से वो इस लीड को जो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोक पाएंगे। यहाँ पे स्ट्रिक्स ने अपनी अल्ट का भी अच्छे से इस्तेमाल ज़रूर किया था, ऊपर के अल्ट का यूज़ करके जाएंगे वापस। यहाँ पे फाइट कंटिन्यू होती हुई स्केरक्रो की एचपी काफ़ी ज़्यादा लो, पर काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड यहाँ पे आता हुआ टीम बैड स्ट्रैटेजी की तरफ से। दे आर ट्राइंग टू फोर्स द इशू, दे आर ट्राइंग टू गेट दोस पिकॉस। कुछ भी हो उन्हें वो पिकॉस ज़रूर चाहिए। सेरेना 2 किल स्ट्रीक ऑलरेडी जा चुकी है। ड्रैगनाइट की एचपी काफ़ी ज़्यादा लो, देखना क्या वो बच पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टैंकी वो यहाँ पे होते हुए, एंड he has actually managed to buy quite a lot of time for his team। यहाँ पे मेडिक की एचपी is also quite low। Scarecrow wants to go in for that kill, but नहीं मिल पाएगा उनको वो किल, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड यहाँ पे 80 पॉइंट्स और साइड बाय साइड स्कोर ज़रूर कर दिया, पर रापडॉस को लेने की पूरी कोशिश रहेगी इस टाइम पे टीम बैड स्ट्रैटेजी की। देखना है क्या वो निकाल पाएंगे इसको या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आ चुका है, बैकअप जरूर आ चुका है, काफ़ी अच्छे तरीके से रिटेलिएट भी कर रही है केमिनी स्पोर्ट्स की टीम पर। हुपा को फिनिश ऑफ कर दिया सीधा। 30 मोर सेकेंड। देखना पड़ेगा कि क्या टीम केमिन निकाल पाएगी इसको। पिकाचू ने बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर कर लिया ज़ापडॉस को, एंड नाउ दे जस्ट गोना रन फॉरवर्ड किसी ना किसी तरीके से। दे वांट टू गो इन फॉर दोस स्कोर्स 438 to 288। दे नीड टू टंक एट लीस्ट those points that they have in hand. It's 542, and the way that they're winning all over the map clearly shows that comeback is always possible, and an amazing play from the side of bad strategy. They were being dominated right from the early game, right from the first minute of the match, and the way that they came back. They lost almost each and every objective, almost all the dreadnoughts, almost all the rotom, and yet they secured the Zapdos. They won the team fights. They won 2 to 3 continuous team fights, first in that bottom side and then near the Zapdos, and they did not allow Team Kemin to stand a full 5-man strong. एक एक करके pick off करते हुए they kept on pressing their advantages, so they really played exceptionally well in this match. That was absolutely fun match to watch, because looking at the stats currently, you can clearly see recovery काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे दोनों ही टीम की। ब्लिसी के हाथ में 78,000 HP recovered by Luffy, meanwhile Kira recovered 95,000 HP। डैमेज भी काफ़ी अच्छे से दिख रहा है उनका, डैमेज टेकन भी 106,000 डैमेज टैंक। I mean 1,06,248, that's actually way too much to be honest। Meanwhile लिंच यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज डील करते हुए दिख रहे हैं, 74,369। lovely number, I would say। The scoring king from both of these teams would be the Serena, Scarecrow from Bad Strategy and Kid from Kemin eSports। They both were the MVP from their respective teams, played an extremely well game, both of them। यहाँ पे अगर स्कोरिंग चार्ट की बात करें तो देख सकते हैं कि पूरा टाइम टीम केमिन वर इन द लीड
स्टार्टिंग से 65 देन 2 minute mark 4 minute mark then 6 and 8 हर टाइम पे they were the ones who were in the lead and then at the final stretch के final seconds में Zapdos को secure करके यहाँ पे सीधा scoring करी थी team bad strategy ने and they managed to win the game. They've actually secured the game number 1 for their side. Now we'll have to see how well things go in game 2 and if possible then game number 3 because everyone would love to watch game 2 and game 3 between both of these teams. So game 2 में definitely Kevin की backs will be against the wall. So we might see कि कुछ ना कुछ comfort pick ज़रूर लेकर आ सके वो अपने पास में किसी ना किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं एडवांटेज में आने की कोशिश करें. अगर आपके पास comfort picks होते हैं ना तो एक चांस होता है तुम्हारे पास एक you know कंफर्ट जोन में तुम होते हो कि हाँ मैं इस हीरो के साथ अच्छा खेलता हूँ, दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई बेस्ट पोकेमॉन. तो उस पर एक फ्रीनेस थोड़ी सी मिल जाती है कि यू नो कि इस पोकेमॉन की क्या स्ट्रेंथ है, किस पॉइंट पे मैं इस पोकेमॉन से आउटप्ले ज़रूर दे सकता हूँ. तो एक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि केमिनी स्पोर्ट्स एटलीस्ट 1 या 2 पोकेमॉन से स्विच अप करें एंड उसके बाद वो उस गेम नंबर 2 में जीतने की कोशिश करे बिकॉज इट्स अ डू और डाई मैच फॉर देयर साइड. अगर वो जीते तो they'll force a game 3. अगर वो हारते हैं then bad strategy will be the ones who will be the second semi-finalist and they will be facing team SATUL in the finals. यहाँ पे probably SATUL के members ज़रूर बैठ के देख रहे होंगे कि किस तरीके से कौन सी टीम कैसे खेलती है ताकि फाइनल्स में उनके अगेंस्ट वो थोड़ा स्ट्रैटेजाइज ज़रूर कर सके. तो देखना है किस तरीके से अभी ये टीम जब अपने हीरोज़ को पिक करेंगी. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइम पे प्रॉबेबली टीम बैड स्ट्रैटेजी शायद सेम पिक्स के साथ ही जाने की कोशिश करे. पिकाचू, हूप और ब्लिसी 3 हीरोज तो उन्होंने रखे हैं बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने गेम नंबर 1 में भी रखे थे. बट दे आर नॉट गोइंग इन फॉर द सरीना दिस टाइम. यहाँ पे स्केयरक्रो इज गोइंग फॉर द ब्लास्टॉइज. तो थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर देखने को मिल रहे हैं हमको. इनफी यहाँ पे किड इज गोइंग फॉर द सरीना. ड्रैगनाइट दोबारा से सिक्योर किया. हूपा भी उनके पास है अलॉन्ग विद ब्लिसी. सो ऑलमोस्ट सेम ड्राफ्ट दोनों ही टीम्स का लाइक द गेम नंबर 1. बट इसमें ज़राओरा के साथ गए हैं NHK. ट्रामोरेंट इन्फी ने ज़रूर सिक्योर किया. देखना कि किस तरीके से अब वो खेलेंगे इस गेम के अंदर आगे. जस्ट जैसे द बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल राइट नाउ. सो कुछ भी हो दे नीड टू गेट द विन इन दिस मैच क्योंकि अगर इस मैच में वो जीते हैं तो ही गेम नंबर 3 फोर्स कर पाएंगे. बैड स्ट्रैटेजी की कोशिश पूरी रहेगी कि वो गेम 2 के अंदर ही शट डाउन करके रख दे टीम केमिन eSports को. विल हैव टू सी किस तरीके से ये आगे बढ़ के निकल के आएंगे. यहाँ पे गेम नंबर 2 हो चुका है. रिमोट स्टेडियम के अंदर हम आ चुके हैं and now we're gonna witness what's gonna be the outcome of this game in the next 9 minutes and 53 seconds. यहाँ पे Zeraora is gonna go into the central area. I really love playing Zeraora to be honest, and the power spike that he actually gets. अगर snowball कर दिया then it becomes really difficult for the opponent to back up and come back in that game. प्लस हो सकता है थोड़ी टैंकीनेस के साथ भी जाने की कोशिश करे कि they need at least one tanky item with him no matter what. कुछ ना कुछ करके भी because he becomes very squishy to be honest, very squishy. तो यहाँ पे थोड़ा सा सेफ भी खेलना पड़ेगा. उन लोगों को थोड़ा ध्यान भी देकर रखना पड़ेगा क्योंकि they need to continuously score those points. यहाँ पर और बहुत तरह रोटेशन देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं. काफ़ी अच्छा एग्रेशन यहाँ पे ब्लिसी का पिक सीधा सिक्योर कर लिया and they're probably going to go in for more. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग he will manage to secure some HP for himself, but यहाँ पे पॉइंट्स रोकने में रहेंगे नाकामयाब. 29 पॉइंट्स ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं यहाँ पे टीम बैड स्ट्रैटेजी के मेंबर्स. है probably gonna focus on the bees right now. कोशिश ज़रूर करेंगे सारी बीज सिक्योर करने की. काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सिक्योर भी कर रहे हैं. meanwhile looking at the top side it's almost the same thing coming in on that top lane. यहाँ पे kid wants to continue his farming. He wants to level up ASAP. They've actually got quite a few points on their hand. तो अगर force किया issue
काफ़ी ज़्यादा चांसेस दे माइट बी एबल टू स्कोर क्वाइट अ टन ऑफ पॉइंट्स टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे सेरेना कोशिश ज़रूर करेंगे, तो वहाँ पे आ चुके हैं, रोकने की कोशिश, किड को थोड़ा डैमेज देने की कोशिश, 1v1 ज़रूर चल रहा है टॉप लेन में। किड हैज़ टू रिट्रीट नो मैटर व्हाट। यहाँ पे पिक ऑफ अगर हुए तो काफ़ी डिसएडवांटेज में ज़रूर जाएंगे, यहाँ पे कोशिश ज़रूर रहेगी सर्वाइव करने की, ही विल मैनेज टू सर्वाइव। ऊपर का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट आता हुआ। मीनवाइल इन्फी यहाँ पे बॉटम लेन की तरफ हमें दिख रहे हैं लूफी के साथ, एंड यहाँ पे कोशिश ज़रूर करेंगे और थोड़ा सिक्योर करने की किल्स पोकेबॉल्स वगैरह का, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। दे वांट टू कीप दोस ऑन हैंड, दे वांट कि अगर 1 या 2 किल उन्हें मिले तो फिर अपनी एडवांटेज को फोर्स ज़रूर करें। दे प्रॉबेबली वेट फॉर द फर्स्ट रेड नाउ, दे वांट टू समहाउ गेन द एडवांटेज। अभी 43-0 का स्कोर ज़रूर है, दे आर नॉट इन द लीड एट ऑल। मीनवाइल in the top side you can clearly see the advancement from Kevin eSports. They are forcing Evil backwards. He has to leave his tier 120. The only Pokeballs that needs to be dunked in order to get that tier 1 of the picture. Meanwhile यहाँ पे हुपा अपने पोर्टल का ज़रूर यूज़ कर चुके हैं, देखना है कि क्या उनकी पूरी टीम आ पाएगी। यहाँ पे yes they are focusing on the bottom red now. यहाँ पे ज़रूर HPR डाउन करेंगे केविन eSports के मेंबर की। मीनवाइल ड्रैगनाइट इज ऑल्सो है, वन पॉसिबल है कि यहाँ पे यूनाइट में यूज़ करके थोड़ा बेहतरीन डैमेज भी हमें देखने को मिल जाए। बिल्कुल यूज़ करेंगे अपना यूनाइट मूव, लेकिन कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा उसमें। एवरीवन वांट्स टू गो इन फॉर द रेड। यहाँ पे ज़रा और काफ़ी अच्छे तरीके से स्टील कर लिया अपनी टीम के लिए, एंड नाउ दे आर गोना फोर्स दिस इशू, दे आर गोना फोर्स टीम CS back as much as possible. Already secured 1 kill. They want to go in for more no matter what. काफी अच्छा CC भी उनकी तरफ से आता हुआ। Meanwhile Kid is gonna jump into the backline. Zeraora के 2 kill streak और आ चुकी है यहाँ पे। लूफी को भी finish off बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। Dragonite is gonna get 1 kill in return of Upa, but that is going to be that maximum he can do right now. Meanwhile Kira is the one chasing Strick. He wants to go in for more. Meanwhile यहाँ पे portal लगाने की भी कोशिश हो चुकी है। Scarecrow will finally manage to retreat. That was a very big win, I would say, coming in for the side of Team Bad Strategy. But they couldn't exactly score the points that they needed to. यहाँ पे टॉप लेन की tier 1 बहुत ही अच्छे तरीके से निकालने में कामयाब हो चुका है टीम TS के मेंबर्स। अंदर गोइंग इन फॉर द रॉटम एज वेल, स्नीकीली लेने की कोशिश। काफ़ी ज़्यादा लो HP है उसके, सिक्योर भी कर लेंगे सीरीना, सिक्योर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा डैमेज भी उनके पास। यहाँ पे स्क्वर्टल ज़रूर है, कोशिश करेंगे रॉटम को रोकने की, पर यहाँ पे देखिए चेजिंग का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा। केविन eSports wants to go in for more। यहाँ पे ज़राओरा हो सकता है पिक ऑफ। मीनवेल काफ़ी अच्छी अल्टीमेट का भी यूज़ ब्लास्टर्स की तरफ से, बट देखना है कि क्या वो बचा पाएंगे इसको। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में लगती हुई इस टाइम पे टीम बैड स्ट्रैटेजी के मेंबर्स, एंड दे विल लूज ऑल द 3 मेंबर्स इन द टॉप साइड, और शायद टॉप की tier 2 भी यहाँ पे निकालने में कामयाब हो जाएंगे टीम केविन eSports के मेंबर्स, एंड यस दे विल मैनेज टू डू सो। एक बेहतरीन रॉटम सिक्योर के साथ एक बेहतरीन लीड भी उन्होंने अपनी टीम के लिए सिक्योर कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में टीम बैड स्ट्रैटेजी अगेन। पर मेरे हिसाब से दिस इज बेसिकली देयर कंफर्ट जोन टू बी ऑनेस्ट। लास्ट गेम में भी सेम चीज़ें ही हो रही थी, दे वर लूजिंग सिंस द बिगिनिंग। तो सच लास्ट में जब उन्होंने ज़ैपडॉस को सिक्योर किया था, उसके बाद यही पूरा गेम उन्होंने टर्न किया था। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस टाइम पे भी सेम चीज़ करने की कोशिश रहेगी। यहाँ पे ओपन हार्ट का बेहतरीन इस्तेमाल ज़रूर किया है। कीरा थोड़ा बहुत डैमेज ज़रूर खाएंगे उससे, देखना पड़ेगा कि क्या ड्रेड नॉट वो ले पाएंगे। जोन आउट तो बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, इस बार सेरीना ईजिली ड्रेड नॉट को सिक्योर कर चुकी है। ज़राओरा नहीं कर सकते दोबारा से आज फीलेस वाले ड्रेड नॉट को। काफ़ी लो HP में यहाँ पे टीम केविन eSports के मेंबर्स, दे आर एक्चुअली प्लेइंग इट वेरी स्मार्टली, वेरी सेफ। रेड नॉट सिक्योर किया एंड उसके बाद सीधा आराम से बैक चले गए। दे नॉट फोर्सिंग द इशू टू मच, आराम से अपना बैक लाइन में थोड़ा खेल के इजी पोकिंग डैमेज देते और अब देयर गो इन फॉर द रॉट। हम फोर्स कर दिए यहाँ पे हुपा कॉल्ट यूज़ करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोर्स आउट किया है हुपा का मेरे हिसाब से। तो दे वांट टू गो इन फॉर मोर टू बी ऑनेस्ट। उन्हें ड्रैगनाइट की यहाँ पे काफ़ी अच्छी अल्ट इन लोगों को कनेक्ट ज़रूर हुई थी। दे फाइटिंग इन देयर ओन टावर। ड्रैगनाइट ऑलरेडी ज़रूर ऊपर किल सिक्योर कर चुके हैं, जो क्रैमरन यहाँ पे फिनिश ऑफ हो गया है। ब्लास्टर्स ने अच्छा किल निकाला है, बट ही हिमसेल्फ इज गेटिंग क्वाइट लो इन HP। यहाँ पे सेरेना की ऑलमोस्ट फुल HP है एंड इज गोना wreak havoc in that back line, and that is exactly what they've done। and अब bottom का tier 1 भी यहाँ पे जाएगा
बहुत ही बेहतरीन लीड एंड बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे काउंटर एंगेज टीम केमिन eSports के मेंबर्स करते हुए हमें नजर आए हैं. That was really well played, and they did not even allow anyone from bad strategy to take Rotom. Since they have not been allowed to take Rotom, they are losing on to those objectives. यहाँ पे EXP में अगर हम डिफरेंस देखें तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट सिंस ड्रैगनाइट इज लेवल 13, सिंस सेरीना इज लेवल 13, तो काफ़ी अच्छा बर्स्ट पोटेंशियल ज़रूर है उनकी तरफ. एंड यहाँ पे ज़ेराउरा को अगर किसी ना किसी तरह कुछ इम्पैक्ट डालना है तो उन्हें पिक ऑफ होने से बचना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. यहाँ पे एक और बार आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए टोटल की किल का भी यूज फोर्स आउट कर देंगे. इवेंट बैक टू द बेस एंड कम बैक इनटू दैट फाइट. देखना है कि किस तरीके से दे प्ले अराउंड. दैट्स गोना बी वन पिक ऑफ ऑलरेडी. लेसी का यहाँ पे क्या अच्छे से सिक्योर करता है. सेरीना की एचपी काफ़ी ज़्यादा लो होती है. यहाँ पे टोटल भी कोशिश करेंगे जोन आउट करने की. मेंबर्स ऑफ केमिन eSports यहाँ पे काफ़ी अच्छा रॉटम को अपनी तरफ खींचा, तो देखना है कि क्या सिक्योर कर पाएंगे. वो नहीं कर पाए. That's gonna be another Rotom secure coming in from the side of Kevin eSports, but the retaliation is way too good. देखना है कि क्या पिक ऑफ करने में कामयाब जरूर होंगे. बिल्कुल नहीं हो पाएंगे. Since almost everyone from Kevin eSports went back into their tower, and that's gonna be the counter engage from their side. They want to go in for more. They want to go in deep. Boopa काफी अच्छे स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए after using his ultimate. देखना है कि किस तरीके से वो पिक ऑफ बाहर निकाल पाएंगे. कीरा की एचपी काफी ज्यादा लो, and yes, they will manage to pick one off. That's already 2 kills secured by their side. Meanwhile, यहाँ पे Blastoise की HP काफी ज़्यादा low, will not be allowed to recall. Cramorant securing another beautiful kill, and they want to go in for more. They want to go in for the Zapdos this time. Let's see if they actually manage to secure it, or he will be able to steal it. He does not have the internet move. He will be deleted with an ease. यहाँ पे ज़ेराउरा की पिकाचू की कोशिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, but he was not allowed to secure the Zapdos at all. Now he has to run away no matter what, and we can already see team bad strategy surrendering because they lost the Zapdos fight, and there was no way that they could have come back in this match. That's what they thought, honestly, but they kind of saved a few minutes. But then again, it might have been possible for them to come back, but it was really difficult, honestly, really difficult. Like on the books, yes, you can say that there was 1% chance, but in reality, we know when a team secures the Zapdos, they get a massive upper hand in the fight, because it becomes really easy for them to score the goals, and उनके पास unite moves भी थे इस time पे, so it would have been much more easier for them. Plus they had the numbers advantage too, so they finally secured the game number 2 for their side, though. So we'll witness the game 3, to be honest. And यहाँ पे अगर स्कोरिंग चार्ट को देखें तो बिल्कुल स्टार्ट जब हुआ था गेम हमारा, तो क्लियरली थोड़ी सी लीड ज़रूर थी टीम बैड स्ट्रैटेजी के पास. दे वर प्लेइंग रियली गुड, रियली एग्रेसिव इन द अर्ली गेम. देन slowly team Kemin eSports, they started to pick up their pace. After the 2-minute mark, they scored their first few goals, and then after the 4-minute mark and around 4 and 5 minutes, they were the ones जब उन्होंने एक major fight भी जीती थी Dreadnought के पास भी, and Rotom भी secure किया था top side में, and उस Rotom पे follow up देके they broke down the tier 2, and वहाँ से जो उन्होंने lead को continue रखा है, and जिस तरीके से deny किया टीम बैड स्ट्रैटेजी के मेंबर्स को स्कोर करने से, दैट वाज रियली वेल डन एंड वेल प्लेड. सो really smart play coming in from their side. We were looking at the details. It's gonna be Serena doing really well in this match. About 73,000 in total damage. Strix with on his Dragonite also dealt 75,000 damage. So made sure that the damage was enough to take down the tankiness that was coming in from bad strategy. MVP rating यहाँ पे किड को मिलती है केमिन eSports की तरफ से, while NHK on ज़ेराउरा getting the MVP rating of 49. Though I would say it's possible like ज़ेराउरा pick did not work out for them, but they've played one fight really well in that bottom lane. They did not secure करके, and they managed to secure 3 to 4 kills as well as try to take down tier 1, but then again they could not repeat that process in the map. So that was it for the game number 2, guys. Finally Kemin eSports have forced the game number 3, so make sure to stay tuned, hit that like button as well as subscribe button, and we're gonna come back with the game number 3 very quickly. And make sure to check out the description. We already have
the registration link for the next tournament, the next weekly scrims, and you just have to click on that, register your whole team, and go forward with it. Do it. I know you want to participate in that because that's how people learn. We're gonna jump into the lobby for game number 3. यहाँ पे अब देखना है कि किस तरीके से ये teams अब drafting करेंगी, because both of them need to win this match if they want to go in for the grand finals up against the S8UL team. Gaming force to game number 3 is like a clear proof, a picture to show us how competitive both of these teams are. Game 1, bad strategy. Won it with I would say difficulty, to be honest. There was one mistake by eSports that they lost the Zapdos. And bad strategy capitalized on it really well. But in the second game, they did not make that mistake and they managed to secure that game for themselves, forcing their opponents to surrender. So that's a big blow, honestly. Mentally, it's actually a very big blow because you already have a pressure on your opponents now that you've been continuously scoring and काफ़ी अच्छे तरीके से आगे भी निकले आप स्कोर करते तो काफ़ी स्मार्टली यहाँ पे इस बार खेले थे eSports के नंबर पर। देखना है गेम नंबर 3 में कैसे ड्राफ्ट करेगी ये टीम यहाँ पे। ओके, टीम बैड स्ट्रैटेजी बिल्कुल गेम नंबर 1 के ड्राफ्ट पे वापस जाती है, हमको दिखाई दे रही है। सिक्योर द ग्रे निंजा, सिक्योर द सरीना, ब्लिसी भी है, हुपा भी है उनके पास, एंड पिकाचू। तो काफ़ी अच्छा बैलेंस उन्होंने बनाया है डैमेज और टैंकीनेस के बीच में। एंड यहाँ पे टीम eSports are gonna keep the draft as same as they had in game number 2। तो यहाँ पे दोनों टीम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राफ्ट को लेकर आ चुकी है। देखना है कि इस बार कौन सी टीम गेम नंबर 3 के अंदर एक विन निकाल के लेकर जाएगी। क्या पिकाचू दोबारा से लकी चार्म की तरह काम करेगा टीम बैड स्ट्रैटेजी के लिए, या ड्रैगनाइट अपने रिंग बना के सब सारे मेंबर्स ऑफ बैड स्ट्रैटेजी को डालेंगे उसके अंदर और करेंगे फिनिश ऑफ, सिक्योर करेंगे इस गेम में विन। We'll just see in a few more minutes, guys. We're gonna jump into the remote arena real quickly and see which one of them will actually get the win. Game number 3. Let's jump into the match. तो दोबारा से जंगल की तरफ हमें जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, while Dragonite will be jungling from the eSports. Now they probably want to follow the same strategy, जहाँ पे they keep on scoring, keep maintaining that lead as well as denying all the farm and all the creep to team bad strategy. I apologize for that. Now they already have Pikachu on that bottom side. They'll be able to deal quite a ton of damage in the early game, and he needs to play it a little safe too. Now Kira wants to play a little aggressive. He wants to go in for the inmate. Yes, secures that 1-3 for his side and also gets that level up. That level up was necessary. You can see the aggression from a bad strategy this time. काफ़ी अच्छे तरीके से एक लेवल एडवांटेज मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीनिंग का भी थोड़ा श्रेय अपना आराम से थोड़ा बुश के अंदर बैठ के सेफ खेल रहे हैं, कोशिश ज़रूर करेंगे एक आध पिक ऑफ निकालने की। दीज आर आउट देयर एंड यहाँ पे बहुत आराम से सिक्योर करके भी ले जा चुके हैं दीज को बॉटम साइड एज वेल। मैनेज सिक्योर दिस ऑब्जेक्टिव्स। नाउ विल सी इस तरीके से अगर मूव फॉरवर्ड इन दिस गेम दे विल प्रोबब्ली वेट फॉर द ड्रेडनॉट। यहाँ पे पिक ऑफ करने का चांस ज़रूर है, देखना पड़ेगा क्या वो सिक्योर ज़रूर कर पाएंगे। स्ट्रिक wants to go in for that kill but nope, HP hasn't increased back. यहाँ पे Scarecrow की HP काफ़ी ज़्यादा लो, will jump back in, deal quite a lot of damage to Strick and he will recall. Meanwhile in that bottom side यहाँ पे BC HP काफ़ी ज़्यादा लो, will finally get that level 4, will get the evolution in and now will try to somehow manage to win that fight। यहाँ पे रूपा ने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल ज़रूर किया था अपने पोर्टल का। ब्लिसी टॉप साइड पे जा चुकी है। मीनवाइल कैमरन बॉटम में ज़रूर आ गए, कोशिश करेंगे गोल स्कोरिंग को रोकने के और पिकाचू कामयाब होंगे गोल स्कोर करने के अंदर। देखें क्या वो रिट्रीट कर पाएंगे, कुछ बिल्कुल कर पाएंगे। भाई टॉप लेन में अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो सरीना विल जंप बैक एंड फोर्थ इनटू दैट पोर्टल, विल ट्राई गेट सम डैमेज इन। किड की थोड़ी सी ज़्यादा लो, विल
retreat back after scoring those points, 29-23. Both of these teams are playing really, really well. Meanwhile, 25 more seconds. यहाँ पे रॉटम और ड्रेडनॉट के आने के लिए तो पहली फाइट प्रॉब्ली सी है ड्रेडनॉट, और यहाँ पे स्पेस पे काफी ज्यादा लो. They will manage to kill the Greninja though. I would say a really good backup from Blissey as well as the Serena, and they're gonna secure the bees as well for their side. तो अब देखना है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अब एडवांटेज हो चुकी है EXP की भी थोड़ी सी, एंड दे गोना मूव टुवर्ड्स दैट बॉटम साइड. तो ड्रेडनॉट की फाइट हमें देखने को जरूर मिलेगी अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर. यहाँ पे दोनों ही टीम आ चुकी हैं. दे विल प्रोबेबली फोर्स they will try and kite some damage. किसी न किसी तरीके से एक आध पिक ऑफ निकालने की कोशिश ड्रैगनाइट पे ही पहला पिक ऑफ निकाल दिया है. बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे खेलते हैं, पर ग्रीनिंजा भी सीधा फिनिश ऑफ होंगे. सेरेना का काफ़ी अच्छा प्ले, ब्लिसी को भी कर लिया है पिक ऑफ. तो टैंकीनेस के ऊपर किया वार बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमारी टीम केमिन eSports उस फाइट को जीतती हुई दिखाई दी है. दे वांट टू फोर्स द इशू दो. सेरेना वर्सेस सेरेना दोनों के दोनों ही करेंगे रिट्रीट बहुत ही अच्छे तरीके से. रूपा के अल्ट का इस्तेमाल दोनों ही टीम के मेंबर्स गए थे बेस में और आएंगे वापस. और यहाँ पे ड्रेडनॉट अभी भी बिल्कुल उसी HP में काफ़ी लो HP यहाँ पे दिखती हुई. यहाँ पे सेरेना कोशिश जरूर करेंगे पिक ऑफ करने की, बिल्कुल करेंगे पिक ऑफ. कैमोरेंट को यहाँ पे नहीं जाने दिया वापस बेस के अंदर. ड्रैगनाइट अपने मेन फॉर्म में आ चुके. फाइनल एवोल्यूशन में देखना है कि क्या कुछ पिक ऑफ निकालने में कामयाब हो पाएंगे. यहाँ पे यूनाइट मूव अभी किसी की अवेलेबल नहीं है, तो स्टिल द स्किल विल बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ब्लिसी ने ज़रूर सिक्योर किया था वो वाला ड्रेडनॉट, बट यहाँ पे रिटेलिएशन आता हुआ हमें दिख रहा है टीम बैड स्ट्रैटेजी की तरफ से, एंड दे विल रिट्रीट आफ्टर फोर्सिंग द होल टीम ऑफ टीम केमिन eSports बैक इन द टावर. और सीधा उन्होंने टेलीपोर्ट मारा टॉप लेन में. जो उनकी स्ट्रैटेजी है पिक रोटेशन वाली, बॉटम में ड्रेडनॉट के बाद सीधा टॉप में रॉटम की तरफ जाएंगे. उसी को कंटिन्यू रखा है यहाँ पे. वो जा रहा है अपनी यूनाइट मूव्स का इस्तेमाल करके. दे वांट टू गो इन फॉर्म और ड्रैगनाइट बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया अपनी यूनाइट मूव, एंड काफ़ी ज़्यादा कोशिश डैमेज वगैरह देने की. किसी की HP बहुत ज़्यादा लो है, पर रॉटम अभी भी टावर तक नहीं पहुँच पाया. आई वुड से वेरी गुड डिफेंस फ्रॉम टीम बैड स्ट्रैटेजी. They managed to defend their tier 1 on that top side. Score is still 23-29, and यहीं पे सीधा 40 पॉइंट स्कोर कर दिए. एंड काफ़ी अच्छे तरीके से हुपा ने अपनी टीम को एक लीड दिलवाई है. पर 69-69 was total score, make it 109-99. दोनों ही टीम्स कंटिन्यूस स्कोरिंग पर फोकस कर रही है. आफ्टर द ऑब्जेक्टिव यहाँ पे काफ़ी अच्छा पिक ऑफ हुपा के ऊपर निकाल दिया है, एंड दे विल ट्राई एंड ब्रेक दैट tier 1. एक ही HP बची है उसको. If they won't, they can actually go in and destroy that, but they're going to leave it be for now. I have absolutely no idea why. If anyone knows in the comment section, please ज़रूर बताना कि उन्होंने वो एक HP का tier 1 क्यों छोड़ा था उस पॉइंट पे. दो they finally destroyed it right now. Meanwhile, continuously looking at the top side, यहाँ पे 20 दोबारा से आ चुके हैं. They will try to secure it in थोड़ा सा सेफ खेलेंगे क्योंकि उनको पता है वो सेरेना से फाइट नहीं जीत पाएंगे इस पॉइंट पे प्रोबेबली. एंड उनकी टीम पूरी की पूरी बॉटम लेन पे जो फोकस कर रही है फॉर अनदर ड्रेडनॉट. दे वांट टू प्रेस देयर एडवांटेज इवन मोर, एंड यहाँ पे फाइट कंटिन्यू होती दिखाई दे रही है. दोनों यूपन अपनी अल्ट का इस्तेमाल जरूर कर लिया है. टैंकीनेस काफ़ी अच्छे तरीके से आएगी, बट इन द बैक लाइन दैट्स गोना बी ड्रैगनाइट सिक्योरिंग द ड्रेडनॉट फॉर हिज टीम, एंड दे विल मैनेज टू लूज फॉर मेंबर्स सिंस Greninja played exceptionally well and got a 3-kill streak. The fourth one was killed by the Serena. So the Greninja strategy coming in clutch for bad strategy. They have managed to secure a massive win as well as a massive lead, 259 to 114. Let's see if they actually manage to pick Serena off. Yes, they will manage to do that, and now Team Kemin eSports are going to focus on that bottom. They will. Let's see if they actually manage to do that. No, Greninja has secured the kill on Charizard right now. Rotom is quite low in the HP, and that is going to be a 2-kill streak for Greninja. Meanwhile, they will manage to trade it off for 2 more people. A smart play, I would say. I would say a lucky trade coming in for the side of Team Kemin eSports. They managed to get some points dunked onto that bottom lane as well. So ये काफ़ी अच्छा trade
उनकी टीम की तरफ से यहाँ पर आता हुआ हमको ज़रूर दिखाई दे रहा है। देखना है कि किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे वो इस मैच के अंदर, बिकॉज दे आर बिहाइंड अबाउट 107 पॉइंट्स। ओपी मैच कमिंग इन टू कैलकुलेशन। Zapdos will be appearing in the next 27 seconds. So यहाँ पे सिचुएशन ज़रूर हो गई है रिवर्स, बिकॉज इन द प्रीवियस 2 गेम्स वी वर सीइंग केमिन eSports थी जो कि Zapdos लेने की कोशिश में, Zapdos को रोकने की कोशिश में थी। बैड स्ट्रैटेजी वांटेड टू टेक Zapdos, और यहाँ पे बैड स्ट्रैटेजी कोशिश करेंगे इन केमिन eSports के मेंबर्स को Zapdos पिट से बाहर करने की, क्योंकि उनको नहीं लेने देना है Zapdos इस टाइम पे, चाहे कुछ भी हो जाए। बट केमिन eSports के पास पूरा का पूरा एग्रेशन, यूनाइट को काफ़ी जल्दी फोर्स आउट कर दिया हुपा ने। दे ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू टेक द Zapdos रियली क्विकली। सारी टीम से सारे यूनाइट मूव्स इस्तेमाल हो गए। यहाँ पे देखना कि कौन सी टीम सिक्योर करेगी Zapdos को। दैट इज टीम केमिन eSports। सेरीना ने काफी अच्छा सिक्योर किया, and they have managed to kill 3 people as well, and now they're gonna come in the lead. Meanwhile 407 to 152 is the score. Let's see, that was an amazing play. I would say that was really an amazing play. 407 to 152, that's an outstanding score, to be honest. I mean, it's team bad strategy getting amazing win, like amazing win. They kept their calm in the starting, you know, they changed their strategy, to be honest, and they kind of kept the score on par. The 4 से 5 points के बीच का ही difference था, उससे ज़्यादा का नहीं था. So they managed to keep that score on par, and then बीच में जैसे उनके पास एक chance है, they scored few points. They lost the Dreadnought to Dragonite, पर उसके बाद जो उन्होंने follow up देके kill secure करें, उसके बाद they went on to take down the tier 1 on that bottom side and they forced the issue as well. That was a really smart play from the side of bad strategy though. Honestly, Kemin eSports game number 1 में they were winning. The strategy was working out for their side, but they lost the Zapdos and उसके बाद they lost the match. And game number 2 they did not manage to let bad strategy steal the Zapdos and got the win. But in the third game, clear cut domination coming in from bad strategy, winning the game 407 to 152. Let's look at, I mean, I wanted to look at the stats, but then again misstep coming in from my side. I would really apologize for that. But then again, we've got our 2 finalists, guys. It's going to be team S8UL and they will be battling team Bad Strategy, and we'll see which one of them will get the win in their finals. It's gonna be an amazing game, and make sure to stay tuned as we'll be right back. I'm gonna take a just a short 5 to 10 seconds break. यार गला थोड़ा दर्द कर रहा है, थोड़ा सा पानी पी के आऊँगा. But then again, you should stay tuned because यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग चेक करोगे तो रजिस्ट्रेशन लिंक ज़रूर मिल जाएगी अगले टूर्नामेंट की, जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाला है. तो फटाफट से उस पर टैप करके रजिस्टर करो अपनी टीम को, ताकि तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर सको एंड तुम्हारी टीम के भी मैचेस स्ट्रीम हो. क्योंकि ऑफकोर्स यार, किसको नहीं पसंद उनके मैचेस स्ट्रीम होना, एंड किसको नहीं पसंद कि वो अपने मैचेस के बाद में जाके यूट्यूब पे चेक करेगी. दैट्स एन अमेजिंग प्ले. कमेंट सेक्शन में भी लोग सपोर्ट अच्छा करते हैं ऑनेस्टली. I mean, I usually do, yeah. I usually type which team played well, and that's exactly what I'm gonna ask the viewers as well. Okay, just type on which was one of the best play that you found today in this game. In all the 5 games that we saw, both the matches, 5 games from these teams. We're gonna just wait in for both the teams for a few minutes as they'll be jumping into the lobby really quickly. But I'm gonna, quickly take a sip of water. Okay, a quick update coming in from the deck, guys. It's Kemin eSports जो कि उस गेम को जीती थी 407 to 152. बैड स्ट्रैटेजी नहीं जीत पाई उस गेम को.
because that was a spectator's glitch coming in. So sometimes even game plays with us, game plays with our mind. So Kevin eSports, they secured the Zapdos and उसके बाद continuous scores उन्होंने करे थे. Bad strategy, surrendered it right at that point. They were like, alright, we're out. I don't think so we can get back in this match. So that's gonna be Kevin coming in and gonna play against team S8UL. So दोनों टीम्स काफी एग्रेसिव खेलती है वाली गेम में एंड दे ट्राई टू पुश देयर एडवांटेज. रोटेशंस भी दोनों टीम की ऑलमोस्ट सेम ही रहती है. तो अब देखना है कि किस तरीके से इस गेम में वो आउट प्लेस देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम ड्रेडनॉट्स और रॉटम्स को सिक्योर करेगी. बट वहीं पे अगर हम पिछले गेम की थोड़ी सी बात ज़रूर करें तो बैड स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा खेल रही थी स्टार्टिंग मिनट से ही. जस्ट एज आई सेड, काफ़ी ज़्यादा क्लोज गेम भी चल रहा था. दे वर ऑनेस्टली इन द लीड इन दैट मैच एज वेल. बट एट द एंड ऑफ द डे द ज़ैप्डॉस फाइट जो मेन हुई एंड तरीके से वो ज़ैप्डॉस को सिक्योर किया सेरीना ने फॉर हिज टीम, दैट वाज कमेंडेबल. एंड उसी के बाद दे जस्ट फॉलोड अप विद क्विक स्कोरिंग. तो दोनों ही टीम अपने बेस्ट ड्राफ्ट लेकर आई थी एंड इट वाज the match was toe to toe यार. honestly Zapdos से पहले तक it was toe to toe and actually team bad strategy were the ones who were winning before that Zapdos fight. They wanted to just somehow push Kevin out of that Zapdos pit, पर वो नहीं कर पाया उस तरीके से. तो काफ़ी स्मार्टली वहाँ पे खेल गई टीम Kevin eSports की भी टीम. इवन दो वो मैच में पीछे ज़रूर थे, EXP एडवांटेज उनके पास थी. तो एट द एंड ऑफ द डे उनको पता था कि अगर फाइट उन्होंने फोर्स करवाई तो उनको ग्रेनिंजा को पहले पिक ऑफ करना है एंड साइड बाय साइड सेरीना को फोर्स आउट कर देना उस फाइट से एंड देन दे विल बी एबल टू विन दैट वन. तो उन्होंने ज़ैप्डॉस पे काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस भी किया था एंड बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर किया था एंड दे मैनेज टू गेट एन अमेजिंग विन. I would really say that I don't think so कि दोनों ही टीम ड्राफ्ट में तो ऐसा कुछ चेंज कर सकती थी because since it was almost an equal match from both of the sides, but it was more of micro decisions that came in clutch for both of these teams. कि वो एक सेकेंड अगर तुम लेट हुए तो तुम ज़ैप्डॉस मिस कर दोगे, एक सेकेंड अगर जल्दी हुए तो तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे लंच पे. एंड वही चीज़ थी जो थोड़ा एक्ट कर गई उस गेम के अंदर. The members of that strategy could not secure the Zapdos. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एंड गेम में Zapdos अगर आपका स्कोर डिफरेंस अराउंड 100-150 समथिंग ही है, क्योंकि कि अगर आप उसको लेने में कामयाब नहीं होते हो तो ओपोनेंट्स के बाद वो सीधा आके डंक करेंगे 50-50 पोके बॉल्स और वहाँ पे ऑलमोस्ट 300 समथिंग का स्कोर इंक्रीज कर लेते हैं वो अपना. तो इधर अर्ली गेम से ही तुम इतनी ज़्यादा लीड लेके रखो, दैट इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल. काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है. सो एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव गेम, सामने वाली टीम भी बहुत अच्छे तरीके से रिटेलिएट करती हुई आती है एंड ऐसे गेम से मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है बिकॉज दैट इज़ द फन ऑफ दिस गेम. इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड गेम, बट देन अगेन उसी फास्ट पेस्ड के अंदर काफ़ी माइक्रो डिसीजंस भी होते हैं जो कि तुम्हें स्प्लिट सेकंड के अंदर लेने पड़ते हैं एंड उसी पे डिपेंड कर जाता है कि पूरे गेम का फ्लो किस तरफ जाएगा. वी डिड सी सम अमेजिंग माइक्रो डिसीजन मेकिंग फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टीम्स. वहाँ पे ड्रैगनाइट ने अपनी एल दी कई काफ़ी सारे लोगों को सीधा बर्स्ट डैमेज दिया था बहुत ही अच्छा. ग्रेनिंजा काफ़ी स्मार्टली खेल के डबल ट्रिपल किल निकालने में कामयाब जरूर हुए थे. 3 किल स्ट्रीक 4 किल स्ट्रीक भी देखने को मिली. तो काफ़ी अच्छे प्लेस दोनों ही टीम की तरफ से, आउट प्लेस भी बहुत अच्छे करते हुए नजर आई थी एंड बिल्कुल बराबरी का मैच दोनों ही टीम्स ने दिखाया था. बेस्ट ड्राफ्ट को लेकर आई थी वो आफ्टर ऑल. तो यार इतना देखना तो बनता ही था कि दोनों ऑलमोस्ट खेले बराबरी के ऊपर. एंड यहीं पे बराबरी की अगर हम बात भी करें तो आप लोगों भी कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर करोगे इस गेम में आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, टीम S8UL या टीम Kevin eSports, क्योंकि इन दोनों का भी मैच बिल्कुल टक्कर का होगा. बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव खेलती है दोनों ही टीमें, काफ़ी ओवर एग्रेशन नहीं दिखता है लेकिन ऑनेस्टली अगर बात करें तो यहाँ पे स्कोरिंग ज़रूर करते हैं, चिकीनी स्कोरिंग ज़रूर करते हैं, बट ओवर एंगेज, ओवर स्टेज, ओवर एक्सटेंशन नहीं करते हैं. तो टेक ऑफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. वहीं पे गलतियाँ सिंस अगर आप नहीं करते हो तो आपका ओपोनेंट इन गलतियों के ऊपर गलतियों का फ़ायदा भी नहीं उठा सकता. तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके ये दोनों ही टीम्स आती है एरिना के अंदर. अब देखना है कि इस गेम में ये लोग किस तरीके से
एंड क्या स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों ने ही अपने एटलीस्ट मैचेस तो देख ही रखे होंगे। तो अब देखना है क्या वो आगे बढ़ के निकल के आता है इस गेम के अंदर। यहाँ पे ऑनेस्टली यार कमेंट सेक्शन में टाइप करो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी इस वाले गेम के अंदर। विल इट बी टीम S8UL और विल इट बी टीम केमिन eSports। यहाँ पे आई पर्सनली वुड थिंक कि दोनों ही टीम की अगर स्ट्रैटेजीज देखी जाए तो इवन इन प्रेशराइज सिचुएशन केमिन eSports कैन प्ले रियली स्मार्टली, रियली स्विफ्टली। पर अगर वही बात करें हम टीम S8UL की तो दे नो द थिंग्स दैट दे नीड टू डू। उनको पता उनके विन कंडीशंस क्या क्या है एंड वो उसी के अकॉर्डिंग खेलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। सो देखना है कि मेरे हिसाब से यार आई वोंट पिक अ फेवरेट बट ऑनेस्टली इट्स 51-49। आई वुड से S8UL के शायद थोड़े से चांसेस हो सकता है, पर तुम लोग भी सपोर्ट दिखाओ अपनी टीम्स को, बताओ कि क्या लगता है कि कौन सी टीम जीत कर आएगी इस वाले गेम के अंदर, किस तरीके से वो लोग निकालेंगे इस मैच में और क्या ड्राफ्ट हो सकता है उनका। कि इज इट रियली नेसेसरी कि हूप और ब्लेसी रखो ही रखो टीम में, सिंस वी नो कि एम्बलम्स का भी सीन आ चुका है गेम के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक पिक्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अलोला नाइनटेल्स के पिक्स भी हमें देखने को मिले हैं इसी टूर्नामेंट में। तो हो सकता है उसी टाइप से कुछ ना कुछ पॉकेट पिक्स भी हमारे सामने आ जाए, बिकॉज पॉकेट पिक्स एक सरप्राइज एलिमेंट ज़रूर लेकर आते हैं। एंड जैसे ही वो सरप्राइज एलिमेंट की बात आ जाती है, सामने वाला हो सकता है कि उसके अगेंस्ट स्ट्रैटेजाइज करे, हो सकता है उसके अगेंस्ट स्ट्रैटेजाइज ना कर पाए। तो जहाँ नहीं कर पाते वो वहाँ पे वो पॉकेट पिक्स एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके एक अच्छा सरप्राइज देके एक अच्छी लीड प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाता है। तो हो सकता है कि दोनों टीम एटलीस्ट एक ना एक पॉकेट पिक रखे, एक ना एक कंफर्ट पिक ज़रूर रखे अपने साथ, क्योंकि उससे चांस बहुत रहता है उनके पास एक सरप्राइज करने का अपने ओपोनेंट को एंड यू नो ऐसे ऑफ गार्ड कैच करने का। तो काफ़ी चांसेस है किसी ना किसी तरीके से लेकर आए वो एक ना एक सरप्राइज एलिमेंट। मैं तो ज़रूर देखना चाहूँगा उस टाइप से एक आध पिक यार। पर ओजी पोकेमॉन्स भी लेकर आ जाओ। मेरे कई दोस्त हैं पोकेमॉन के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं। जब भी ऐसे कभी लूजिंग स्ट्रीक होता है ना वो दे लेके चलो भाई ओजी पोकेमॉन्स के साथ उठा के खेलते हैं अब तो। एंड वी यूजुअली प्ले नॉर्मल रैंक मैचेस, तो उसमें आज तक स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कोई भी कहीं घूम रहा होता है। सो वी जस्ट गोना इग्नोर दैट पार्ट दो। तो यहाँ पे टीम्स की रोटेशन वी नो के वेट फॉर द बीज के बाद रेडनो देन डायरेक्टली रॉटम। तो हुपा के होने से काफ़ी अच्छा रोटेशन में एडवांटेज ज़रूर मिलता है उनको। तो हुपा तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मस्ट पिक हीरो इन टुडेज कॉम्पोजिशन, क्योंकि काफ़ी मोबिलिटी भी मिल जाती है। जस्ट जंप बैक टू योर बेस, कम बैक इनटू द टीम फाइट वेरी क्विकली विद फुल HP। तो वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज भी दे सकता है तुम्हारी टीम को। एंड उसी के अलॉन्ग खेलने में पता चलता है कि कितना कंफर्टेबल खेल सकते हैं वो लोग। तो वही माइक्रो डिसीजन की एट द एंड ऑफ द डे बात आ जाती है, किस हिसाब से लेते हैं, कितने अच्छे तरीके से लेते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक भी तुम्हारी काफ़ी लंबे कूल डाउन में भेज देती है स्किल्स को। तो काफ़ी दिक्कतें आने के चांसेस भी इसमें हो जाते हैं। बट देखना रहेगा कि अब क्या टीम S8UL अपने पहले गेम्स की तरह ही ड्राफ्टिंग करेगी या इस बार थोड़ा ड्राफ्टिंग में चेंज करेगी। ये दोनों ही टीम ने स्टडी ज़रूर किया होगा एक दूसरे के ऊपर, बस थोड़ी देर का इंतजार हो रहेगा एंड देन विल सी व्हिच टीम यू नो विल गेट द विन इन गेम नंबर 1। यहाँ पर BO3 रहेगा हमारा फाइनल्स भी। सो एक ही मौका मिलेगा दोनों टीम्स को। यहाँ पे एक ही बार गलती कर सकते हैं वो, दूसरी बार उन्हें सीधा विन निकालनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि गेम नंबर 3 फोर्स कर सके। यहाँ पे मैंने तो अपना प्रेडिक्शन बता दिया था 51-49। तुम लोग बताओ तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी टीम निकालेगी यहाँ पे गेम नंबर 1। मेरे हिसाब से तो शायद S8UL के चांसेस हो सकते हैं, पर अब ड्राफ्ट देखने के बाद ही हमको पता चलेगा कि कौन सी टीम ड्राफ्टिंग में जीत के निकल के आई, और फिर इन गेम डिसीजन मेकिंग से पता चलेगा कि कौन सी टीम गेम 1 निकाल कर लेकर जाएगी। यहाँ पे बस एक ही प्लेयर का इंतजार है गाइस। तो आराम से बैठे रहो, कुर्सी की पेटियाँ ज़रूर बांध लो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को और बेल नोटिफिकेशन पे भी टैप कर देना, क्योंकि उसको जब तुम टैप करोगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा कि कब हम लाइव हैं। और यू नो काफ़ी मज़ेदार वीडियोस भी हैं जो कि तुम जाके चेकआउट कर सकते हो इस चैनल के ऊपर ही। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब ज़रूर करो और चेकआउट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम
पोकेमॉन यूनाइट के बारे में डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा तुम चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो। और हो सकता है तुम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर लो जो कि अभी तक हमने ना देखी हो, ना ही इस टूर्नामेंट में, ना ही किसी और बड़े पोकेमॉन के टूर्नामेंट में। एंड काफ़ी चांसेस है कि तुम एक नया मेटा ही डिस्कवर कर लो, क्योंकि ऐसे ही होते हैं नए मेटा डिस्कवर। इसी तरीके से सरप्राइज कर सकते हो तुम लोग अपने ओपोनेंट्स को साइड बाय साइड, इवन प्लेयर्स को। यहाँ पे फिलहाल तो मैं अपने हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टूट रहा है। अगर किसी को कोई रेमेडी पता है तो प्लीज़ बताओ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। I don't want to go bald enough। बट यहाँ पे फाइनली दोनों ही टीम्स यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। दोनों ही टीम्स के सारे मेंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो अब थोड़ी देर में हम चलेंगे ड्राफ्टिंग के अंदर। ड्राफ्टिंग में पता चलेगा कौन सी टीम किस तरीके से खेलना चाहेगी इस गेम को। क्या अर्ली गेम एग्रेशन की स्कोरिंग की तरफ जाएंगे लुकारियो वगैरह पिक करके, या थोड़ा डिफेंसिव थोड़ा पैसिव स्ट्रैटेजी की तरफ इस बार इनका रहेगा झुकाव। हम पता चलेगा कुछ ही सेकंड्स में। एंड फाइनल्स है गाइस, फाइनल्स ऑफ आवर टूर्नामेंट। बट यहाँ पे निराश बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लिंक अगले टूर्नामेंट के डिस्क्रिप्शन में ही है। तो तुम जाके उसे क्लिक करो और रजिस्टर कर लो खुद को अगले टूर्नामेंट के लिए, जो कि मंडे से शुरू होने वाला है। और यहीं पे हमारा शुरू हो चुका है फाइनल्स बिटवीन टीम S8UL जो कि है ब्लू साइड पे, और टीम केमिन eSports रहेगी हमारी रेड साइड पे। देखना है कि किस तरीके से ये दोनों ड्राफ्ट करेंगे। केमिन eSports अपने उन्हीं पिक्स को वापस से सिक्योर करती दिख रही है। कैमरंट उन्होंने ले रखा है, उन्होंने साइड बाय साइड रीना भी लिया है, हुपा ब्लिसी, तो कॉमन पिक्स है जो हमें ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर ही दिखते हैं। पर यहाँ पे एक शायद सरप्राइज पिक के साथ वो जा सकते हैं, जो कि है मच्छर। ओके, देखना है कि किस तरीके से इसके अलॉन्ग वो यहाँ पे खेलेंगे। ऐसे एक यूएल गार्डिवोर को आराम से लॉक कर चुके हैं साइड बाय साइड। हुपा ब्लिसी ब्लास्टर्स भी है, तो एक हुपा ब्लिसी वाला कॉम्बो तो हमें हर मैच में ही देखने को मिलता है। एग्जैक्ट कॉम्बो जो कि हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखना है कि ब्लास्टर्स किस तरीके से खेलेंगे। वो सिल्वियन का भी अच्छा पिक मेरे हिसाब से है कि काफ़ी डैमेज डीलिंग हीरो है। वो टैंक्स को भी मेल्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हमने देखा था कि लास्ट में जो सिल्वियन थी किस हिसाब से मेल्टिंग डैमेज दे रही थी। वो अर्ली गेम का भी एग्रेशन डिसेंट है। एंड यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से अब ये दोनों ही टीम्स खेलेंगे, क्योंकि हम आ चुके हैं रिमोट स्टेडियम के अंदर। गाइस गेम नंबर 1 है, फाइनल्स का मैच है, शुरू हो चुका है गेम। लेट्स सी व्हिच टीम गेट्स द विन। यहाँ पे दिस वन थिंग फॉर श्योर, सिंस यहाँ पे गार्डिवोर जरूर है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि थोड़ा मिड टू लेट गेम की तरफ झुकाव रखने की कोशिश करेंगे टीम S8UL के मेंबर्स। यहाँ पे एक सरप्राइज पिक है, बट देन अगेन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेट गेम का। तो देखना है किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहेंगे इस गेम के अंदर। यहाँ पे 2-1-2 की स्ट्रैटेजी दोनों ही टीम्स लेकर आ चुकी है। 2-2 टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे काफ़ी तक डैमेज देते हुए सिल्वियन की HP काफ़ी ज़्यादा लो। लूफी वांट्स टू गो इन फॉर द किल, पर आराम से रिट्रीट करेंगे, थोड़ा बैकआउट कर लेंगे, क्योंकि सिल्वियन वेंट बैक विद पिस्टल। वेट करने भी काफ़ी अच्छी कोशिश और कर भी लिया है। तो लूफी एक इवोल्यूशन आगे हो चुके हैं ओपोनेंट ब्लिसी के सामने। तो एक काफ़ी अच्छी एडवांटेज अब उससे उनको मिलती है। यहाँ पे 3-3 का रोटेशन हमें देखने को मिल गया दोनों टीम बॉटम साइड पे। मीनवाइल दो बंदे दोनों ही टीम्स के टॉप साइड पे भी हैं। तो यहाँ पे मेजर फोकस बॉटम साइड पे जरूर रहेगा। कोशिश करेंगे पिकआउट वगैरह करने की, क्योंकि रेड नॉट भी बॉटम में थोड़ी देर में आने वाला। पर यहाँ पे 850 की बीज आ चुकी है एंड दोनों ही टीम कोशिश करेंगी बीज वगैरह को सिक्योर करने की। ऐसे यूएल की भी कोशिश अच्छी थी एंड यहाँ पे दोनों बैकआउट भी कर जाएंगे। ऐसे यूएल की HP थोड़ी सी लो जरूर नहीं दिख रही है। मीनवाइल यहाँ पे टॉप लेन में अगर देखा जाए तो थोड़ा अच्छा डैमेज देते हैं। मीनवाइल बॉटम लेन में बचा काफ़ी अच्छा किल भी सिक्योर कर लेंगे सिल्वियन के ऊपर। वो एक मेजर किल सिक्योर कर लिया तो काफ़ी चांसेस भी है उनके पास एक एडवांटेज से थोड़ा पुश करने की। एंड यहाँ पे जाएंगे वो टॉप लेन की तरफ रोटेट करने के लिए। देख रहे हैं थोड़ा ओवर एक्सटेंड कर चुके हैं पोर्टल। यहाँ पे काफ़ी अच्छा डैमेज भी देते हुए पर रिट्रीट भी कर पाएंगे। बेहतरीन रूपा के पोर्टल का इस्तेमाल यहाँ पे HP फुल करके आ गए हैं वापस। पर करना पड़ेगा रिट्रीट की बेस के अंदर, टावर के अंदर पोर्टल खड़े थे तो वहाँ पे तो उनको मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि शील्ड मिलती रहती है तो एक टैंकीनेस भी आ जाती है। आउट प्लेज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखना है
किस तरीके से एग्रेशन थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे दोनों ही टीम के मेंबर्स आफ्टर द ड्रेडनॉट एंड द रोटम राइट। वेल दे डिसाइड टू गो इनटू द ड्रेडनॉट राइट अवे, या फिर हो सकता है थोड़ा अपना एग्रेशन स्विच करे, probably go and trade the objectives, एक रोटम के बदले एक ड्रेडनॉट। we'll see। meanwhile the pokeballs in hand यहाँ पे क्लियरली काफी ज्यादा टीम CES के हाथ में। एक और बार बीज यहाँ पे आ चुके हैं, they want to go in for the bees as well। 14 more seconds for the dreadnought to arrive। यहाँ पे हूपा ने प्रॉब्ली अपनी या पोर्टल का इस्तेमाल कर लिया है। दोनों ही टीम सीधा आ चुकी है बॉटम में। अगर ना सी फुल 5v5 फाइट यहाँ पे देखना है कौन सी टीम निकाल पाएगी। काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे शायद टीम CES जीत जाए। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन पिक ऑफ जरूर कर लिया क्रामर एंड काफी अच्छा पिक। मीनवाइल ब्लास्ट 3 लोगों के बीच में काफी अच्छा बर्स्ट डैमेज देते हुए सीधा डिलीट हो जाएंगे मचाम के हाथों में, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा टैंक नहीं है कि आप उनका डैमेज यहाँ पे झेल पाओ। मीनवाइल वापस आते हुए दोनों ही टीम्स के बाकी पोकेमॉन भी तो एक डेडलॉक में प्रोबेबली इस सिचुएशन में, पर यहाँ पे काफ़ी अच्छा पिक ऑफ हूपा को कर दिया फिनिश। लिसी की HP है तो बहुत ज़्यादा लो, लेकिन देखने की क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ पे लूफी की भी HP काफ़ी ज़्यादा लो होती है दिख रही है, उसको रिट्रीट करना पड़ेगा अदरवाइज पिक ऑफ हो सकता है। पर यहाँ पे बैक लाइन में सेलिना बढ़िया 2 किल सिक्योर करते हुए एंड एक काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रेडनॉट निकाल लिया है हमारी टीम S8UL ने, लेकिन अपने मेंबर्स को नहीं बचा पाई क्योंकि उनको निकाल लिया है टीम 7 eSports के मेंबर्स ने। आपको यहाँ पे आ चुके अल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि एक भी पोकेबॉल को डंक ना करने दिया जाए। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिफेंस की कोशिश ज़रूर थी उनके पास। फाइनली यहाँ पे Tier 1 बॉटम का निकाल लिया गया। अब सीधा रोटेट करेंगे टॉप लेन की तरफ। यहाँ पे दोनों ही टीम जाएंगी रॉटम पे। अब देखना है कि रॉटम की फाइट किस तरीके से निकलती है। ड्रेडनॉट तो निकाल लिया था, लेकिन उसके बाद की जो फाइट थी वो हार गए थे, तो इसी वजह से अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज में मेरे हिसाब से टीम S8UL के मेंबर्स, बस 8 to 91 का स्कोर डिफरेंस। यहाँ पे थोड़ा डैमेज ज़रूर खाते हुए अच्छा रिटेलिएशन में डैमेज भी दिया है स्ट्रिक्स ने। मीनवाइल रॉटम के उधर यहाँ पे फाइट कंटिन्यू होती है। ब्लास्टर्स ने काफ़ी अच्छी अल्ट का भी यूज़ किया है, काफ़ी लो HP भी है। कोशिश ज़रूर करेंगे 1 या 2 किल निकालने की। काफ़ी रेजिस्टेंस का फ़ायदा उठाते हुए सीधा जाएंगे बैक एंड कोशिश करेंगे वापस से टीम फाइट में जाने की। रॉटम की HP काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं क्या वो निकाल पाएंगे। सेलिना काफ़ी अच्छे इस्तेमाल, रॉटम भी निकाल लिया है उनकी टीम ने। काफ़ी लो HP में भी छोड़ेंगे बाकी मेंबर्स को टीम S8UL के लोग, एंड देखने क्या इस एडवांटेज से पुश करने की कोशिश करेंगे कि रॉटम को डिफेंड बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं 7 eSports के मेंबर्स। यहाँ पर काफ़ी लो HP में सेलिना फाइनली कर दिया है पिक ऑफ। देखना है कि क्या वो 1-2 पिक ऑफ और निकाल के फोर्स कर सकते हैं इस इशू को टॉप साइड में। ऊपर ने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया एंड बहुत यहाँ पे मचाब भी आ चुके हैं सपोर्ट करने के लिए एंड डिसिप्लिन वे में रिट्रीट करेंगे S8UL के मेंबर्स। पता है कि ये वाली फाइट अब नहीं जीत सकते हुए। थोड़े से पॉइंट जरूर स्कोर करे थे उन्होंने। सो नाउ द स्कोर इज 38 to 91, पर यहीं पे रिटेलिएशन अब आता हुआ हमें दिख रहा है कि eSports के मेंबर्स का काफ़ी अच्छा पिक ऑफ उन्होंने किया सीधा ब्लास्टर्स का। वांट टू गो इन फॉर मोर। यहाँ पे 2 किल की स्ट्रीक पे है मचाम 2। अल्ट यूनाइट का इस्तेमाल ज़रूर किया था एंड काफ़ी अच्छे तरीके से सीधा फोर्स बैक भी कर दिया बाकी मेंबर्स ने। यहाँ पे कोशिश करेंगे एक और 40 पॉइंट स्कोर करने के, बिल्कुल किए हैं। थोड़ा सा लेट हो गया हमारे ब्लास्टर्स। मीनवाइल बॉटम में जो ड्रेडनॉट की फाइट थी, इस बार ड्रेडनॉट सिक्योर कर लिया बड़े ही आराम से 7 eSports के मेंबर ने। 211 to 38 स्कोर का डिफरेंस वो लेके बैठे हैं इस टाइम पे। बॉटम की तरफ जाने की कोशिश भी ज़रूर रहेगी। सीधा रोटेट करेंगे बॉटम टॉप, दोनों Tier 1 वो निकाल चुके हैं। यहाँ पे टॉप लेन में कंटिन्यूस फाइट होती है। अच्छा पॉइंट ज़रूर स्कोर किया था ब्लास्टर्स ने, लेकिन यहाँ पे पिक ऑफ भी हो जाएंगे 70-211। आई वुड से एक अच्छा स्कोर उन्होंने ज़रूर किया, बट देखना पड़ेगा कि अब वो किस तरीके से इसको फॉलो अप करते हैं, क्योंकि दे नीड टू गो इन फॉर दैट रॉटम। दे नीड टू समहाउ गेट दैट डंक्स इन। अगर वो डंक्स उनको मिल पाते हैं, उन्हें निकाल पाते हैं उन डंक्स को, तो ही वो इस मैच में थोड़ा मेरे हिसाब से बराबरी पे रह पाएंगे। क्योंकि अदरवाइज दे वुड नीड टू गो इन फॉर द ज़ैपडॉस। और ज़ैपडॉस की फाइट में एंड में जो टीम सिक्योर कर लेगी ज़ैपडॉस, उसके काफ़ी मेजर एडवांटेज मिलेगा। ब्लास्टर्स काफ़ी अच्छा स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करेंगे सिक्योर करने की रॉटम को, लेकिन नहीं कर पाए। सीधा
जाएंगे, रिट्रीट करेंगे और यहाँ पे बॉटम में काफ़ी अच्छे पॉइंट स्कोर करने की कोशिश इनकी टीम की साइड बाय साइड। ब्लास्टर्स कोशिश बहुत कर रहे हैं रॉटम को रोकने के, पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पिक ऑफ करते हुए देख लिया है कि eSports मेंबर्स ने, एंड वो टॉप का टियर 2 भी निकाल लेंगे। तो बॉटम के टियर 1 के लिए उन्होंने टॉप का टियर 2 लिया। आई वुड से वेरी गुड ट्रेड फ्रॉम देयर साइड। 147 to 304 का स्कोर डिफरेंस, 25 मोर सेकेंड फॉर ज़ैपडॉस। यहाँ पे फोर्स कर चुके हैं अब वो टीम SA2L के मेंबर्स को ज़ैपडॉस की फाइट लेने के लिए। तो अभी तक SA2L के मेंबर्स ज़ैपडॉस फोर्स नहीं कर रहे थे, दे वर जस्ट फोर्सिंग द ओपोनेंट टीम आउट ऑफ द ज़ैपडॉस पिट। एंड यहाँ पे वो खुद ही उस सिचुएशन में कि उन्हें लेना ही लेना पड़ेगा। देखना है कि किस तरीके से अब टीम eSports के मेंबर्स रहेंगे ज़ैपडॉस पिट में, किस तरीके से वो बेट आउट करवाएंगे सामने वालों के स्किल्स। यहाँ पे फाइट ज़रूर होने वाली है थोड़ी सी ही देर में। दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट दोनों टीम के मेंबर्स कहाँ पे। देयर ऑल जस्ट देयर यू नो वेटिंग। यहाँ पे डैमेज देते हुए ब्लिसी को थोड़ा बहुत काफ़ी फाइट है यहाँ पे क्लियरली बॉटम साइड में वो टीम नज़र आ चुकी है। काफ़ी अच्छे से रिट्रीट करेंगे एनसी वगैरह भी। एंड ज़ैपडॉस अभी भी वही का वही, उसे कोई नहीं छेड़ रहा है। पता चल रहा है कि कितने प्रेशर में है दोनों टीम, क्या लेवल है इस मैच का। इस टाइम पे बस थोड़ी सी पोकिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर। ब्लास्टॉइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस टीम फाइट के अंदर। अगर वो जिंदा रहा कोई चांस है उनके पास एक रॉटम सिक्योर ज़ैपडॉस को सिक्योर करके एक टर्न अराउंड करने का। बट 1 मिनट 13 सेकेंड रिमेनिंग, फोर्स करना पड़ेगा इशू SA2L के मेंबर्स को, चाहे कुछ भी हो जाए। दे आर नॉट गोइंग फॉर मोर, दे आर नॉट फोकसिंग टू मच राइट नाउ। अभी भी किसी भी तरीके से दे वेंट फाइनली कमिंग बैक इन फुल फोर्स, दे आर फोर्सिंग द इशू। एंड यहाँ पे क्लियर फाइट हो चुकी है दोनों टीम से। सारे लोग यूनाइट मूव का इस्तेमाल कर चुके हैं। काफ़ी 3 लोगों के बीच में जाके ब्लास्टर्स ने अच्छा मूव से इस्तेमाल किया पर नहीं कर पाया कोई भी डैमेज। 2-0 ट्रेड फॉर नाउ एंड दे वांट टू गो इन फॉर मोर। यहाँ पे और चेस करते हैं कि eSports के मेंबर्स 3 लोगों को कर चुके हैं फिनिश ऑफ। कूपा होंगे चौथे फिनिश एंड फाइनली ब्लास्टर्स को भी कर दिया जाएगा आउट ऑफ दिस एरिना। एंड यहाँ पे बेहतरीन तरीके से किया है सिक्योर इस गेम को, फोर्स कर दिया अपने ओपोनेंट को सरेंडर करने पे। एंड ये लगातार देखा जाए तो तीसरा सरेंडर किया है उनके ओपोनेंट्स ने। तो इससे पता चलता है किस तरीके से eSports के मेंबर्स खेलते हैं, कैसे अपनी एडवांटेज को पुश करते हैं। एंड ब्लिसी को मिलता हुआ MVP। लूफी बहुत ही अच्छे तरीके से खेले। वहीं मेलन उनके ओपोनेंट टीम में काफ़ी अच्छे तरीके से MVP सिक्योर करते नजर आए। 75 डंक्स उन्होंने मारे अपनी टीम की तरफ से। पर एट द एंड ऑफ द डे eSports यहाँ पे गेम को निकालती है हमको नजर आई है। डिटेल्स पे देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज डील किया है चैम्प ने, 56,585। तो बहुत ही अच्छा डैमेज उन्होंने निकाला है। मीनवाइल माइट को अगर हम देखें तो ही हैज़ डेल्ट द मोस्ट डैमेज, 56,609। लॉबी में हाईएस्ट डैमेज निकालने के बावजूद वो गेम नहीं निकाल पाए डैमेज। टैंक भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया, 32.7%। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हुए नजर आए थे वो अपने ब्लास्टॉइस को, लेकिन वो एक हीरो से मैच नहीं जीत पाए। जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ, किस तरीके से पहले टीम द स्टार्टिंग वाज फ्रॉम द साइड ऑफ SA2L एंड उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट स्कोर ज़रूर करे थे। दे वर डिनाइंग द पॉइंट्स एज वेल। बट जैसे ही वो ड्रेडनॉट वगैरह सिक्योर करके निकाला, उसी के बाद से आफ्टर द 4 मिनट मार्क या 3 मिनट मार्क, team eSports just went on a spree. They did not stop and continuously ज़ैपडॉस फाइट भी फोर्स करवाई। बहुत ही डिसिप्लिन प्ले था यार वो वाला। तो लाइक they even knew the positions of their opponents, yet they stayed there. They knew कि अगर हम आराम से बैठेंगे, अगर हम उस इशू को फोर्स करवाएंगे तो ही जाके उनके ओपोनेंट्स को पिक ऑफ कर सकते हैं बहुत आराम से। एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। तो मेरे तो हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली खेला गया ये पूरा का पूरा मैच इस टाइम पे। देखना पड़ेगा कि किस तरीके से गेम नंबर 2 में चीज़ें निकल के आएंगे, क्योंकि SA2L को गेम 2 जीतना ही जीतना पड़ेगा। बिकॉज इफ दे डोंट डू दैट तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में आ सकते हैं वो।
अगर वो चीज़ हुई तो they obviously would not want to lose the finals at all, but for the people who are watching there, you're not losing anything. अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जाके देखो तो तुम्हें अगले टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगी एंड उस पर जाके अपनी टीम्स को रजिस्टर कर लो एंड वंस यू डू दैट विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट्स एंड यस ऑफ कोर्स फेस एन अमेजिंग कंपटीशन जो कि हमारे सामने भी रहा है. सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड गाइस. लाइक ज़रूर कर दो स्ट्रीम को एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि अगर वो करोगे तो ही तुम्हारा सपोर्ट हमको दिखेगा. कमेंट डाउन भी करते रहना साथ साथ कि कौन सी टीम तुम्हें लगता है जीत जाएगी. सिर्फ ऐसे यूएल पे मैंने दावा लगाया था, वो टीम गेम 1 तो नहीं जीत पाई, तो अब सेकंड गेम में देखना है कि किस तरीके से वो कोशिश करेंगे इस गेम को जीतने की. केमिन eSports क्या वो 2-0 से फाइनल्स जीत जाएंगे या टीम S8UL फोर्स करेगी गेम नंबर 3. थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा. मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड टिल देन. और अभी दोनों ही टीम्स लॉबी में आकर रेडी हो चुकी हैं. सो वी जस्ट वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल टू जंप इनटू दैट गेम नंबर 2 पर. वहीं अगर गेम नंबर 1 पर वापस फोकस करें तो एक कंट्रोल के साथ खेली टीम केमिन eSports. उनको पता था उनकी एडवांटेजेस कब है, किस पॉइंट पे है, उसी के अलॉन्ग वो खेले. ब्लास्टर्स से उनको दिक्कत ज़रूर आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने पहले गार्ड ओवर में फोकस ज़रूर किया था, उसको फिनिश ऑफ करके उसके बाद दे वेंट ऑन टू ब्लास्टर्स. उसके बाद ब्लास्टर्स को सबसे लास्ट में उन्होंने सिक्योर किया. तो एक डिसिप्लिन वे में वो ज़रूर खेले थे पूरे के पूरे ही गेम को. और अब देखना है किस तरीके से ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा चेंजेस शायद हमको देखने को मिल जाए फ्रॉम द साइड ऑफ S8UL. गेम 1 तो नहीं निकल पाया था उनका, तो हो सकता है गेम 2 में कुछ स्टेजेस देखने को मिले. यहाँ पे इस बार वो वीनसॉर की तरफ थोड़ा टर्न कर रहे हैं. अब देखना गार्डिवर सिक्योर करेंगे या सिल्वियन. यहाँ पे शायद सिल्वियन की तरफ जाना चाह रहे हैं कर्स वाइल लुकिंग एट द ड्राफ्ट ऑफ टीम केमिन eSports. उनका बिल्कुल सेम ड्राफ्ट लाइक द लास्ट मैच. एंड द फॉलोइंग थिंग, लाइक इफ इट्स नॉट ब्रोकन देन नो नीड टू फिक्स इट. Now since वो पिछले मैच में जीते थे इस तरीके से, so they want to win this game as well in the similar way. So we'll just see how well things go on. यहाँ पे Sylveon, Venusaur, Hoopa, Blissey, Blastoise up against Serena, Blissey, Machamp, Cramorant and Hoopa. तो ये Cramorant का पिक I would really say काफ़ी अच्छा पिक निकल के आ रहा है. इसका आंसर मतलब शायद कोई भी टीम नहीं दे पाई है. सो केमिन eSports का ये पॉकेट पिक है, काफ़ी अच्छा सरप्राइज एलिमेंट की तरह निकल के आता है. अच्छा डैमेज भी दे देता है यार. यू नेवर नो कब अलग से साइड से निकल के आकर मैं एग्जीक्यूट करके वो चला गया. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ दे वांट टू प्ले दिस मैच एज वेल. मचाम सिंस उनके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया था गेम नंबर 1 में, दे वांट टू गो इन द मचाम अगेन फॉर गेम नंबर 2. अब पता चलेगा कौन सी टीम निकल के लेकर जाएगी गेम नंबर 2 में विन. एंड देखना है कि क्या केमिन eSports जीतेगी 2-0 या S8UL यहाँ पे कोशिश करेगी गेम 3 फोर्स करने की. हम आ चुके हैं रिमोट स्टेडियम के अंदर गाइस. देखते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पे निकाल के लेके जाएगी विक्ट्री. दोनों टीम नॉर्मल अपना जंगलिंग की तरफ फोकस करते हैं. यहाँ पे E2 का स्प्लिट दोनों ही टीम की तरफ से. एक जंगलर दोनों का आराम से फार्म करेगा सेंट्रल एरिया में एंड फोकस ज़रूर करेंगे न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव्स पे. कोशिश करेंगे निकालने की. काफ़ी अच्छे तरीके से निकालते नज़र भी आ रहे हैं इस टाइम पे. 6 पॉइंट स्कोर करने के लिए थोड़ा सीधा जाएंगे. पहला ओपनिंग स्कोर अपनी टीम की तरफ को देते हुए. एंड मेरे हिसाब से अच्छी कोशिश इनकी एक और ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने के लिए नहीं कर पाए हैं वो. तो जब प्लेइंग सिटी सेव मीनवाइल द टॉप साइड में फाइट कंटिन्यू हो रही है. यहाँ पर अभी भी चेजिंग चल रही है. टोटल वापस बेस के अंदर जाएंगे. मीनवाइल बॉटम साइड में Venusaur काफ़ी अच्छे तरीके से डैमेज दे रहे हैं. यहाँ पे निकाल जाएंगे. थोड़े और पॉइंट स्कोर करेंगे अपनी टीम के लिए. 37-0 का स्कोर यहाँ पे दिखता हुआ. एंड देखना पड़ेगा किस तरीके से अभी टीम आगे की तरफ खेलेंगी. यहाँ पे अर्ली विन मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जाती हुई टीम S8UL की तरफ पर काफ़ी अच्छा बर्स्ट डैमेज हमें माइट को देते हुए वो कर देंगे रिट्रीट. एंड बीस को बहुत ही आसानी से सिक्योर कर लिया टॉप साइड में टीम केमिन eSports के मेंबर्स ने. बॉटम साइड में भी उनकी थोड़ी सी डोमिनेशन देखने को हमें मिल सकती है. यहाँ पे फाइट ज़रूर चल रही है. तो Venusaur की HP काफ़ी ज़्यादा लो थी. जाएंगे थोड़ा सा सेंट्रल एरिया की तरफ, कुछ क्रीप्स वगैरह को मार के अपना फार्म करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. with his regain his HP as well. जैसे telling exactly what's happening on the screen. यहाँ पे fight continue होती है. wants to go in secure another objective, fails to do so. and यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से flank
करते हुए दिखे हमें मचान। कर लिया एक किल सिक्योर एंड इज गोइंग टू फोर्स डाउन दैट बॉटम टियर 1। बल्बासोर विल हैव टू रिट्रीट नो मैटर व्हाट। यहाँ पे हूपा कोशिश कर रहे थे थोड़ा टैंक कर लिए, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रिक्स ने उसको डिलीट किया है मेरे तो हिसाब से वो शायद दोबारा इस तरीके से उसके सामने नहीं आएंगे ब्रो। 7:50 ऑन द क्लॉक। अब देखना है कि किस तरीके से वो आगे निकल के आएंगे इस गेम के अंदर। रियली डिफिकल्ट राइट नाउ। अर्ली एग्रेशन हमें देखने को ज़रूर मिला था टीम S8UL की तरफ से, बट अब वो चीज़ बिल्कुल पलट चुकी है। 62-37 का स्कोर डिफरेंस। Meanwhile, both of the teams are probably going to focus on that bottom lane। एक अच्छा डैमेज थोड़ा सा दिखता हुआ है। सरीना आ चुकी है, अपना बढ़िया जंप डैमेज दे के सिक्योर कर लिया है एक किल ब्लिसी के ऊपर एंड 20 को भी कर लेंगे वो सिक्योर। वांट्स टू गो इन फॉर मोर दो। देखना है कि क्या 2 किल की स्ट्रीक मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी एंड दे विल मैनेज टू टेक डाउन द बॉटम टियर 1 एज वेल। और अब क्लियर कट एडवांटेज उनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। मेलिन की एज भी काफ़ी ज़्यादा लो है, जाएंगे पीछे एंड ड्रेडनॉट को बड़े ही आसानी से शायद कर जाए यहाँ पे टीम केमिन सिक्योर। बिल्कुल कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड यहाँ पे करेंगे वो हूपा की एक और बार स्किल का इस्तेमाल, सीधा जाएंगे टॉप साइड में सिक्योर करने के लिए रॉटम। एंड सेम चीज़ S8UL को पता है यही होने वाली है। दे वेंट टू द टॉप साइड एज वेल। और देखने क्या वो खुद सिक्योर कर पाएंगे रॉटम को। टीम टू बी रियली डिफिकल्ट दो। रॉटम यहाँ पे बड़े आसानी से सिक्योर कर लिया। टीम केमिन eSports के मेंबर्स ने वांट टू गो इन फॉर मोर। काफी अच्छे डैमेज सरीना देती हुई बस और यहाँ पे पिक ऑफ हो चुके हैं कैमरन के हाथों। और यहाँ पे टावर के अंदर क्लियर कट स्टार्ट फाइटिंग हमें देखने को मिल रही है। अच्छा डोमिनेशन आता हुआ केमिन eSports के मेंबर्स से और सीधा टॉप टियर 1 को निकाल लेंगे वो। आई डोंट थिंक सो वो बचने वाली है, बिल्कुल नहीं बचने वाली है। सीधा क्या है फिनिश ऑफ 168-67 का स्कोर। 101 की लीड उनके हाथ में आती है और अब शायद जाएंगे बॉटम की तरफ ताकि एक भी पॉइंट ना स्कोर करने दे अपने ओपोनेंट को। शो करने की पूरी कोशिश रहती है और वही कर रहे हैं इस टाइम पे केमिन eSports के मेंबर्स। यहाँ पे जस्ट एज आई सेड मचाप और क्रैमरन ये दो पिक ऐसे निकल के आ रहे हैं इनकी तरफ से कि इनके पास मोबिलिटी भी है काफ़ी अच्छी एंड बर्स्ट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए केमिन eSports एंड देखना कि अब वो क्या और इशूज फोर्स करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ खेलते हुए आराम से पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। चोक करने की कोशिश है अपने ओपोनेंट को उन्हीं के जंगल के अंदर। या आप अपने टावर के अंदर ही रहिए, आप टावर के बाहर आएंगे तो फिर आपको सामना करना पड़ेगा हमारे बर्स्ट डैमेज का। तो हम आराम से वेट करेंगे जब तक ड्रेडनॉट स्पॉन होता है ताकि हम उस टाइम पर सिक्योर करें। और आप अगर टावर से बाहर आओ तो आपको पिक ऑफ कर सके। यहाँ पे जीनस और उनके पास यूनाइट मूव ज़रूर है, उनका गीगा ट्रेनर पेटल डांस लगा के कोशिश करेंगे थोड़ा HP वगैरह लेने की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी खाते हुए वो आधी HP ऑलरेडी हो चुकी है। देखना है क्या वो पिक ऑफ कर पाएंगे। पिक ऑफ और ज़रूर कर दी यूनाइट मूव यूज़ करने पर। यहाँ पे मचान भी आ चुके हैं, जीनस और खुद अपनी यूनाइट मूव यूज़ करेंगे। अच्छा खासा कॉम्बिनेशन गीगा ट्रेनर पेटल डांस का। देखना है कि क्या एक किल सिक्योर कर पाएंगे वो इस फाइट में। वो बिल्कुल देखा जाएगा कि यहाँ पे HP काफ़ी ज़्यादा लो होती हुई दिख रही है। कैमरन ने ब्रिसी के ऊपर एक किल ज़रूर सिक्योर किया है पर सरीना की HP बहुत ही ज़्यादा लो किया। ड्रेडनॉट से फिनिश ऑफ हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, आराम से कर देंगे रिट्रीट। यहाँ पे ब्लास्टोइस भी आ चुके हैं अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए एंड काफ़ी अच्छे तरीके से हूपा ने सिक्योर कर लिया उसका ड्रेडनॉट एंड 4 लोगों को फिनिश ऑफ भी कर दिया है। तो जो वो थोड़ा हार रहे थे अब फाइनली दे विल रिडीम देमसेल्व्स एंड यहाँ पे सीधा इस टावर को उड़ा के जाएंगे टॉप लेन की तरफ। कोशिश ज़रूर करेंगे टॉप लेन के टावर को भी लेने की। 33 ही HP बची है इस टावर की। यहाँ पर सीधा पूरी की पूरी टीम ऑफ टीम केमिन eSports गई है टॉप साइड पर रॉटम की तरफ। दे लॉस्ट द ड्रेडनॉट बट दे गोना टेक द रॉटम वेरी क्विकली। मौका भी नहीं दिया S8UL के मेंबर्स को टॉप में जाके रॉटम सिक्योर करने का। अब देखना है कि क्या वो इस एडवांटेज जो उनको मिली है उसको फोर्स करेंगे या वो आराम से थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश में रहेंगे। यहाँ पे दिख तो रहा है कि आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्ले सेरीना की तरफ से आता है। ब्लास्टर्स भी अच्छा स्किल का इस्तेमाल करते हुए ट्राई ज़रूर करेंगे थोड़ा बर्स्ट डैमेज देने का, बट सीधा जाएंगे बेस के अंदर ऊपर की स्किल का इस्तेमाल करके वो कर जाएंगे रिट्रीट। नहीं कर रहे इशू को और ज़्यादा फोर्स दिख रहा है कि वो फाइट्स नहीं जीत पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चेंजेस अब इस टाइम पे
केविन eSports को अपने कॉम्प में अपने प्ले स्टाइल के अंदर लाने पड़ेंगे। ये जिस तरीके से वो फाइट्स जीत रहे थे अब वो चीज़ नहीं हो पा रही है। एंड यहाँ पे अगर लीड देखी जाए तो वो हाथ में है टीम S8QL के पास। S8QL के पास 172 168 यहाँ पे वीनस और काफ़ी क्रेजी पोजीशन में फंस चुके हैं। गीगा ड्रेन पेट्रोलांस का अच्छा इस्तेमाल, देखना क्या HP रीगेन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्रावरेट के ऊपर किल भी सिक्योर करेंगे। यहाँ पे मचाम बिल्कुल बैकअप नहीं देने आए। I'm not quite understanding why that happened though. I don't think so that should have. क्रावरेट के ऊपर पिकअप बहुत अच्छा किया था S8QL के मेंबर्स ने। मीनवाइल अब टॉप लेन से वो सीधा बॉटम लेन की तरफ आएंगे कि ड्रेडनॉट एक और आने वाला है अगले 5 सेकंड के अंदर। ब्लिसी आराम से विजन देती है यहाँ पे, अगर पिक ऑफ होए तो शायद आ सकती है दिक्कत। बट सिंस यहाँ पे फाइट अब दोनों ही टीम की हो चुकी है, इट्स अ फुल 5v5 बैटल गोइंग अराउंड नियर द ड्रेडनॉट। सरीना की HP काफ़ी ज़्यादा लो है, सो दे विल रिट्रीट एंड क्लियर कट domination and you know the map presence coming in from team S8UL. It's amazing. Now both the teams they will probably stay low near Zapdos. यहाँ पे एक शायद एक पिक ऑफ अच्छे डंक के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीम फाइट क्योंकि हो चुकी है, काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट्स यहाँ पे जीतते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। S8UL के मेंबर्स यहाँ पे देखना पड़ेगा, चेज ज़रूर करेंगे वो बाकी रिमेनिंग मेंबर्स को। हुपा की HP काफ़ी ज़्यादा फोर्स बैक कर देंगे उनको। सरीना भी यहीं पर है, देखना है कि क्या वो फोर्स उनका इनका किल सिक्योर करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो। दे वांट टू गो इन फॉर द ज़ैप्डॉस राइट अवे। एंड यहाँ पे आ चुके हैं सीधा मचाम, कोशिश पूरी करेंगे फिनिश ऑफ करने की 1-2 को, लेकिन नहीं है उनके पास उतना ज़्यादा डैमेज। ब्लिसी को जरूर कर दिया फिनिश ऑफ। देखना है ज़ैप्डॉस कौन सी टीम के पास जाएगा। ब्लास्टर्स भी अपनी अल्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं, कोशिश करेंगे यहाँ पे एक आध पिक ऑफ निकालने की। ब्लिसी की HP बहुत ज़्यादा लो है, अभी भी किल 2 सीधा सिक्योर कर लिए वीनसॉर ने। ज़ैप्डॉस यहाँ पे ले लिया है टीम okay, that's team right, team Kemin eSports, man. I was so excited that I forgot their name. They took the Zapdos, but they lost the fight, and since they lost the fight they were wiped out, and since they were wiped out यहाँ पे टॉप और बॉट दोनों ही तरफ से स्कोरिंग चल चुकी थी टीम S8UL की, and they have managed to secure a massive lead for their team. So even though they could not secure the Zapdos, they managed to, you know, kinda get a lead कि अब थोड़ा शायद comfortably वो बैठ सकते हैं। since Zapdos वाला टाइम भी जा चुका है, तो अब देखना है कि क्या टीम केमिन कम बैक कर पाएगी किसी तरीके से। They need to score a few points यहाँ पे, they need to score a few kills, they need to score a few points। continuous knockouts यहाँ पे देते और continuous यहाँ पे यूनाइट मूव को भी इस्तेमाल होता हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लास्टर्स डिफेंड कर रहे हैं, 1 पॉइंट स्कोर करने नहीं दिया है। एन आउटस्टैंडिंग प्ले कमिंग इन फ्रॉम टीम S8UL एंड एन अमेजिंग कमबैक इन दिस मैच। स्टार्टिंग उन्होंने करी थी स्कोरिंग की, मिड में थोड़ा पीछे ज़रूर हो गए थे, लेकिन ज़ैप्डॉस हारने के बावजूद अपने टीम ओपोनेंट्स को वाइप आउट किया और सिक्योर की इस गेम में एक मेजर विन। 168 was the total score of Kemin eSports and 186 is the score of Might alone. Shows how mighty this guy actually is, and an amazing play from their side. Let's look at the stats of this match. Serena did an amazing job honestly. Dealt 29.1% damage in total, 64,533 Kraborant. सबसे ज़्यादा damage इस मैच में आता है 65,858 from the side of Kemin eSports, and since they were the ones in lead, उनकी टीम के पास उनकी टीम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डैमेज है इस गेम के अंदर। पर सीरियसली द गीगा ड्रेन पेटल डांस कॉम्बो and the clear cut damage potential coming in from Akku, 29.5%, that's in total 62,455 for his own team. Did extremely well. हुपा के पास सबसे ज़्यादा रिकवरी यहाँ पे आएगी और 40,108 की, तो काफ़ी अच्छा प्ले उनकी तरफ से भी आता हुआ। मेलन playing on that Hupa did really well. Honestly, this was an amazing nail biter match. Even to the last minute before that Zapdos fight, the only score difference was of 3, 172 to 168. I mean, you can't seem to comprehend that यार at the end of the day कि 3 का score difference है, and उसके बाद
even though Zapdos मिल गया था टीम केमिन esports को, they got the Zapdos, but they were wiped out. तो क्लियरली पता था उस पॉइंट पे टीम एस8यूएल के मेंबर्स को कि Zapdos तो हम हार चुके थे, अगर हम उन्हें वाइप आउट कर देंगे so they'll not be able to come back in this match, and that's exactly what they did. Even though you lose the Zapdos, you wipe out the opponent, there's no one to score. So potato. And you managed to get the scores in as well. So काफी बेहतरीन तरीके से डंक करे भी थे उन्होंने, स्टार्टिंग से ही पूरा गेम बराबरी का चल रहा था, एंड उसके बाद Zapdos fight is like it was the main part of that entirety of the match. पूरा गेम दो यहाँ पे डोमिनेशन में स्टार्टिंग मिनट से मिड गेम तक दिखा था टीम केमिन esports से, जैसे लेट गेम स्टार्ट हो गया था वहाँ पर हमें क्लियरली टैंकीनेस दिख गई थी ब्लास्टर्स और विंग्स, और दोनों की ही मचैम्प उनको वन शॉट नहीं कर पाए थे, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ गई थी, डैमेज थोड़ा लैक कर गए थे। तो देखना है कि क्या अब इस बार भी मचैम्प के साथ ही जाएंगे या इस बार कुछ चेंजेस करेंगे। एस8यूएल would probably want to go in for the same composition, क्योंकि पिछले मैच में काफ़ी कंफर्टेबली वो जीत गए थे, तो हो सकता है इस गेम में भी सेम ही कॉम्पोजिशन के साथ जाए। बट देखना है कैसे कौन से पोकेमॉन का इस्तेमाल वो करते हैं, जैसे कुछ एम्बलम सेट के साथ भी, क्योंकि एम्बलम्स के बाद ही यू गॉट अ लॉट ऑफ रूम सिंस यू कैन ऑप्ट फॉर अ फ्यू specific starts from the emblems and can go for totally different items, and that's probably what the players have in their mind right now. So S8UL gonna go in with the Sylveon again. So they've got the Venusaur Blastoise combination, so they will want to keep that same, and are gonna pick the Sylveon for themselves this time. Blissey and Hoopa are gonna be the frontliners यहाँ पे। बात की जाए टीम केमिन esports की, ब्लिसी हुपा अगेन देयर गोना बी देयर फ्रंटलाइनर्स, ड्रैगनाइट के साथ इस बार जाने का सोचा है अलोंग विद सेरीना एंड क्रामनर, तो काफ़ी अच्छा बर्स्ट डैमेज पोटेंशियल उनके पास इस बार आता हुआ है, एंड सिंस दे गॉट ड्रैगनाइट तो काफ़ी अच्छी ज़्यादा चांसेस भी है, काफ़ी रूम मिल जाता है उनको मिड टू लेट गेम की तरफ। तो देखना है किस तरीके से ये टीम आगे की तरफ निकल के आएंगी, कैसे ये अब इस मैच में खेलेंगी। दिस इज द थर्ड मैच ऑफ द बेस्ट ऑफ 3 गाइस, फाइनल्स का मैच है, एंड देखना है कि कौन सी टीम यहाँ पे जीत के आएगी। विल इट बी टीम केमिन esports और विल इट बी S8UL। यहाँ पे बॉटम साइड में अगर देखा जाए तो क्लियरली एग्रेसिव प्ले यहाँ पे देखने को मिलता हुआ हमारे टीम केमिन esports की तरफ से। तो इवन दो दे लॉस्ट दैट प्रीवियस गेम, उनकी मेंटालिटी में ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ है। वो देखना है कि पोकेमॉन यूनाइट वीकली टूर्नामेंट को इस बार कौन जीतेगा ये थर्ड गेम ऑफ दैट बेस्ट ऑफ 3, एंड एवरीवन वांट्स दिस काइंड ऑफ फाइनल मैन, लाइक जो फुल बेस्ट ऑफ 3 तक जाए। यहाँ पे लूकी सिक्योर करेंगे अपने लिए थोड़ी सी HP, पर यहाँ पे सिल्वियन की मदद से 3 मैन बॉटम में रोटेशन आई है, उससे वो लोग सिक्योर करेंगे ओपोनेंट के साइड के क्रीज पर। यहाँ पे स्कोरिंग अगर देखी जाए तो केमिन esports के मेंबर्स टॉप रोटेशन में जाके कर रहे हैं स्कोर, ड्रैगनाइट लेके दे बीन फॉलोइंग दिस रोटेशन के आप तक लीडिंग विद 3 they're going to go towards that top. That's exactly what they're doing right now, and they're probably going to go in for that dreadnought rotation after they have managed to secure the bees. Meanwhile यहाँ पे बॉटम में अगर देखा जाए तो 3 and 2 का टोटल मेंबर डिफरेंस बिटवीन केमिन esports as well as S8UL। यहाँ पे हुपा ने ज़रूर यूज़ कर दिया है अपना पोर्टल, सो इट विल बी एबल टू क्विकली रोटेट टुवर्ड्स वेरेवर नेसेसरी। Now the thing is, which team plays it pretty well and which team do not take pressure at all, because if they manage to do that, they'll be able to get the win. But right now in the bottom side, they're fucking around each other. That's all what they're doing. With the Giga Rain Petal Dance combination from Venusaur really worked out well. He tanked such ton of damage as well as dealt a lot of damage. But now, since the presence of Serena as well as Dragonite, we'll have to see if they manage to burst him down entirely or not. Meanwhile, looking at the bottom side, you can probably see some engagement, but that's probably it. They're not going at it. Blood nahi rahe bilkul full on hoke. They're just poking each other, and that's all what they're doing right now. The Cramorant
will be taken quite low into will use flicker to retreat back। यहाँ पे 20 को भी अच्छे से सिक्योर कर लिया है 50 more seconds ताकि फर्स्ट रेडनॉग यहाँ पे आए। दोनों ही टीम करेंगी रोटेट उसकी तरफ। वहाँ पे हमें पहली मेजर फाइट दिखाई देगी। ड्रैगनाइट अपने मेजर फॉर्म में आ चुके हैं, ऑलरेडी लेवल 8, तो दे प्रोबेबली हैव एन एडवांटेज ऑलरेडी। देखना है कि किस तरीके से वो निकालेंगे इस फाइट को। रेडनॉट तो शुरू कर चुके हैं, फुल ऑन 5v फाइट यहाँ पे हो चुकी है स्टार्ट। दैट्स गोना बी केओ लेफ्ट साइड टीम। रेडनॉट को निकाल चुके हैं ऐसे ड्यूएल काफ़ी अच्छे तरीके से इस फाइट में और आगे बढ़ती हमें दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे एक अच्छा केओ क्रैमन के ऊपर निकाल दिया सिल्वियन ने। पर यहाँ पे किड एक ऑकवर्ड पोजीशन पे रिट्रीट करेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा गलत पोजीशन में नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो एक्चुअली दे वांट टू फोकस ऑन हिम एट ऑल। यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर दिया ब्लिसी को एंड ओके देखना है कि क्या किड रिकॉल करेंगे। नहीं करने दिया रिकॉल मेलन ने उनको एंड यहाँ पे देखना है क्या वो बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि फाइट मिड में अभी भी कंटिन्यू होती है। ड्रैगनाइट जाएंगे बैक। सेरीना यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन है, नहीं रिट्रीट करने दे रहा है स्क्वार्टल। उसको कुछ भी हो जाए, एक डैमेज लेता हुआ थोड़ा बहुत, पर देखने की क्या किड बच पाएगा। यहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट जरूर कर रहा है और वहीं पे टॉप साइड में रॉटम ले लिया उनकी पूरी की पूरी टीम ने। तो काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी चीकी प्ले और टॉप के टियर 1 ज़रूर निकल जाएगी, सीधा कर देंगे वो स्कोर। रॉटम का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया और सेरीना यहाँ पे काफ़ी स्मार्टी खेलते हैं। यहाँ पे सीधा बैक जाएंगे बेस के अंदर एंड अब नहीं जा रहे आगे इशू को फोर्स करने के लिए, सीधा बॉटम लेन की तरफ करेंगे रोटेट बाकी मेंबर्स केविन eSports के। वाइल सेरीना आराम से यहाँ पे 20 को भी सिक्योर करते हुए आराम से बैक आउट भी कर जाएंगे। They've been winning the entirety of the match। 162-6 का टोटल डिफरेंस है। यहाँ पे अगर पॉइंट डिफरेंस की बात करें तो 156 का मैच देख रहे हो तुम्हारे भाई के टॉप क्लास। तो यहाँ पे कंटिन्यूस अभी भी पोकिंग चलती हुई। somehow team SA12 want to come back in this match again। They basically lost the early game entirely, even though they managed to secure the dreadnought, they're not securing kills at all। 10 more seconds for the dreadnought again and then we're gonna see another team fight coming in। यहाँ पे एक अच्छा खासा डैमेज थोड़ा देते हुए पोक करने की कोशिश जरूर है गीगा ट्रेन पैकेटल डांस कॉम्बिनेशन वाले हीरो यानी वीनसॉर को। तो देखना है कि इस बार क्या वो मैनेज करेंगे ड्रेडनॉट सिक्योर करने में, बिकॉज दे डिड मैनेज टू पोक देम डाउन क्वाइट अ लॉट एंड उसके बाद they went in for the dreadnought। but देखने की क्या they're gonna follow the same thing। yes they are probably just doing the same thing। सेरीना कोशिश जरूर करेंगे, यूनाइट मूव का इस्तेमाल कर दिया लेकिन ब्रास्टर्स करेंगे ड्रेडनॉट को सिक्योर। यहाँ पे चेस करने की पूरी कोशिश है, ब्लिसी भागने की कोशिश कर रही है लेकिन यहाँ पे कर दिया जाएगा उसको पिक ऑफ। क्रैमरन भी आ चुके अब टीम फाइट में काफ़ी ज़्यादा लेट। ड्रैगनाइट यहाँ पे अल्ट का भी इस्तेमाल कर गए थे। मीनवाइल सेरीना यहाँ पे सिक्योर आराम से बैकआउट थोड़ी कर जाएगी। देखना है कि क्या वो किल्स वगैरह निकाल पाएंगे। ड्रैगनाइट ने ब्लिसी का किल जरूर सिक्योर किया है करने की बैकआउट पूरी कोशिश by the members of Team SA12 and they will back out। so even though they secured another dreadnought, they have lost that fight entirely। I mean they're securing that objective but they're not being able to turn it into something Team Kevin eSports is playing is that they're allowing them to take that objective while they're focusing on Rotom। so काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी टॉप लेन की तरफ खेलने वाली उनकी तरफ से निकल के आ रही है इस टाइम पे एंड अडेप्ट किया है उन्होंने इस गेम में काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी फ्रॉम देयर ओन स्टाइल, जो कि ड्रेडनॉट देन रोटम द ड्रेडनॉट रोटम। यहाँ पे वो ड्रेडनॉट पे चाहे हार भी जाएं दे आर फोकसिंग ऑन द रोटम एंड दे आर नॉट लीविंग दैट टू, लेके सीधा दे आर एक्चुअली टेकिंग दोज टावर्स एज वेल। टॉप का टियर 2 हैज आल्सो बीन टेकन डाउन, सो वो सीधा बेस की तरफ जाएगा। मीनवाइल बॉटम साइड इज जस्ट बीइंग डिफेंडेड। 75-296 का टोटल स्कोर है, जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। जो 158 का था पहले वो इस टाइम पे 122 का है। that 122? No, that's 222। Never mind my math। तो या 222 का जो स्कोर डिफरेंस है वो अगर ऐसा ही रहा तो मेरे हिसाब से फिर तो शायद ज़ैप्डॉस ही है जो बचा पाएगा। तो ये अगला जो ड्रेडनॉट आ रहा है इसको सिक्योर करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज it's gonna be the next 40 seconds Zapdos will appear and उस टाइम पे अगर फोर्स आउट कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि केविन eSports जीत जाएगी उसके बाद वाली फाइट को।
तो यहाँ पे ड्रेडनॉट के ऊपर भी अच्छा फोकस करते हुए क्लियरली दिख रहा है जो EXP एडवांटेज उनके पास है उसको यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक और ड्रेडनॉट सिक्योर यहाँ पे कर लिया है, फाइनली उन्होंने पहला ड्रेडनॉट सिक्योर किया। तो दे आर नॉट अलाउइंग द मेंबर्स ऑफ टीम SATUL एट ऑल टू कम बैक इन दिस गेम। पिक ऑफ के साथ अब वो सीधा रोटेट भी करेंगे मिड में, टॉप में। अब जाने के लिए कुछ नहीं बचा है, सीधा एक किल और उन्होंने सिक्योर कर लिया एंड फिर वो ज़ैप्डॉस की फाइट में क्लियर कट मेंबर्स एडवांटेज दे देंगे अपनी टीम मेंबर्स को। ड्रैगनाइट आराम से वहाँ पर थोड़ा सेफली प्ले करेंगे, पोकिंग डैमेज यहाँ पे दे तो सिल्वियन कोशिश करेंगे थोड़ा रिटेलिएट करे, थोड़ा और डैमेज दे, पर ज़ैप्डॉस सीधा शुरू कर चुके हैं। सेरीना बैक लाइन में यहाँ पे क्लियरली यूनाइट मूव तो भी इस्तेमाल हो चुका है, चेज करने की पूरी कोशिश है लेकिन वहाँ पर रिट्रीट भी कर देंगे ब्लास्टर्स, यहाँ पे जोन आउट भी कर रहे हैं हुपा को। बट देखना है कि किस तरीके से वो जीतने की कोशिश करेंगे इस फाइट को। ड्रैगनाइट आ चुके हैं सबसे लेट, लेकिन अच्छा अल्ट का कनेक्ट करा था उन्होंने, बट तो क्लियरली यहाँ पे फाइट यहाँ पे जाती हुई टीम SATUL के पास। दे हैव मैनेज्ड टू सिक्योर 3 kills एंड दे आर गोइंग फॉर ज़ैप्डॉस। सेरीना यहाँ पे आ चुकी है, यूनाइट मूव का इस्तेमाल कर लिया है, एक किल भी सिक्योर कर लिया है एंड नाउ एवरीवन फ्रॉम टीम SATUL दे नीड टू फोकस। या तो ज़ैप्डॉस ले एंड ज़ैप्डॉस भी नहीं ले पाए हैं, वो भी सिक्योर कर लिया ब्लिसी ने फ्रॉम द साइड ऑफ केमिन eSports एंड दिस इज प्रोबेबली इट। केमिन eSports are gonna put the final nail in the coffin, and yes, that's exactly what they have done. They have games. They forced their opponent to surrender in 4. I mean, that's quite a feat to achieve, to be honest. And 396 to 75, और ये स्कोर और ज़्यादा बढ़ सकता था if not for that surrender. Strix getting the MVP, 181 dunks, man, 181 points scored, 77 MVP rating. While Cursed from the side of SATUL getting the MVP rating of 58 with the score of 43. जिस तरीके से शट डाउन करके रखा members of SATUL, that was quite a feat to achieve. Really, that was an amazing way to take control of the whole match, play along with your winning strengths. कि ड्रैगनाइट जैसे इवॉल्व हो जाता है, स्किल्स वगैरह अनलॉक होती है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने का। सेरीना का बहुत ही अच्छा बर्स्ट पोटेंशियल भी है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द काइंड यूज, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड काफ़ी अच्छे तरीके से गेम भी निकाल लिया। ब्लिसी की रिकवरी ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा तो इस टाइम 60%, 73,000, दैट्स एक्चुअली क्वाइट अ लॉट। लूफी डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब इन दैट। वहाँ पे अगर डैमेज की बात करें तो very well divided between Kramer as well as Serena, 27,000, I mean 27% to 26%, 44,000 to 42,000। वहीं पे Dragonite देखिए तो 28,000 ही डैमेज था उनका, उतना ज़्यादा नहीं था। इस बार तो हुपा ने उनसे ज़्यादा डैमेज दिया था, 32,000, but yeah, he made sure that he was always there for his team whenever they needed him। Objectives काफ़ी अच्छे फोकस करे उन्होंने while looking at SATUL। सबसे ज़्यादा डैमेज टैंक वहाँ पे हुपा ने किया था, काफ़ी अच्छा डैमेज उन्होंने टैंक किया 46,000 का, बट दिस वाज नॉट एट ऑल इनफ। वेनसॉर और स्क्वार्टन का जो कॉम्बो यूज़ कर रहे थे वो इस बार उस तरीके से काम नहीं आ पाया। काफ़ी अच्छे तरीके से अडाप्ट किया थी केविन eSports के मेंबर्स ने भी, ड्रैगनाइट को लेकर आ जाते हैं आराम से, विल बी एबल टू फिनिश दोज मेंबर्स ऑफ एंड एक अच्छा फ्रंट लाइनिंग भी उनको मिल गई थी अलॉन्ग विद थोड़ा सा क्राउड कंट्रोल एंड अच्छा बर्स्ट पोटेंशियल while also maintaining the range। तो अच्छा काइट उन्होंने किया and they could poke their opponents from quite a decent range। So that's going to be it for the final match, guys। Thank you all for tuning in and make sure कि you just check out the description and उसमें जो लिंक है आप उस पर जाके अपनी टीम्स को रजिस्टर कर लीजिए ताकि अगले टूर्नामेंट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सके, जो कि होने वाला है मंडे से। लाइक ज़रूर करना स्ट्रीम को, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और हम वापस आएंगे आप लोगों के पास मंडे को विद अनदर टूर्नामेंट और अनदर स्क्रिम्स, और भी मजा आएगा उसको देखने में। Thanks to everyone who all participated and thanks a lot for giving me a chance to cast these scrims. I really enjoyed it. I'm gonna do a much better job on Monday, that is for sure. You're gonna enjoy a lot more, so make sure to hit that subscribe button as well as the bell notification so that you don't miss on any of the new things that we have to offer for you. So
That's probably gonna be it from me. Scared? Yes. Thank you all for tuning in. I'll be signing off. Bye bye.